होता गया। बिल्कुल सर। तो कई बार होता है कि मतलब the real problem you can understand and the real solution will come out of this. इसीलिए कहा जाता है तो दुनिया बहुत छोटी है। दुनिया बहुत छोटी है, and I hope everybody will interact. So please interact, guys, and all the best. And yes, sir, please continue. Now it's up to you. Thank you, sir. Good evening, Shivang san. Long time no see. Yes, sir. Long time. But good to see. Good to see. Better late than never. Yeah. So since students are new, so I will request you to, sir, if you can introduce yourself For in sure, little elaborated manner, and that will be helpful for. And you can also take a little bit of introduction, so possibly both you will be comfortable. Yeah. Absolutely. Yeah, Anjali and Sakshi, you are co-host. So in between, if somebody joining, please facilitate them, right? Admit them, right? Okay, sir. Sure, sir. And if other person, if any disturbance is there, you can mute. You have every right to mute anyone. And if they are not controllable, then please, you can, remove also. So you have all the rights. Right? Please go ahead. Mute everyone other than me. I have that veto. So I am Hardik Dixit, a science graduate and IT and HR postgraduate. Almost 20 plus years in the industry in different organizations. As you might have heard during the interaction, Mr. Shivang Pathak and Mr. Praveen Singh are my ex-colleagues. We work together with the Panasonic Life Solutions India Private Limited. Other than that, I work with a German multinational, Enercon India Limited, which was into manufacturing of wind turbine converters, and with chemical manufacturing and power distribution utility companies as well. Basically Gujarati, based at Bharuch in Gujarat, and thanks to COVID, we are able to connect across the globe now with these technology and tools and utilities. So with Zoom, I'm connecting with all of you. I'm sure you are at a different place in the country. So if we can know each other quickly, that will help us. Language में अगर कहीं कोई ऊपर नीचे करना है, हिंदी, अंग्रेजी, गुजराती 3 भाषाओं का ज्ञान है. इसके अलावा चौथी कोई भाषा मेरे को आती नहीं है. आप लोग बोलेंगे तो समझ लूंगा, लेकिन समझाना मुश्किल है. या आप लोग को आवाज क्लियर हो रही है हार्दिक सर की? Yes, sir. Yes. Okay. What is this filter? Are you using any filter, sir? No, sir, I'm not using any filter. Okay. Maybe, yeah. So voice is clear. I'm glowing by default. Okay. Okay. So you can use maybe because of the lighting. Is it okay now? Making sense? Yeah, little bit okay. It's okay, no problem. You can dim your laptop. So me and Archana madam will take you through this HR module of Young Skill India. You are well aware about this entire Young Skilled India course curriculum and other things. So for HR, we have 2 faculties, myself and Archana ma'am. So we will distribute. So occasionally I'll bore you and ma'am will teach you. That is how we will go ahead in this entire syllabus. Yes, so may I know quickly about you also, so that it becomes a bit easy. कौन कहाँ से है, क्या कर रहा है, क्या करना चाहता है, और यहाँ क्यों इकट्ठे हो गए हमारे साथ? Anyone can volunteer. Good evening, sir. My name is Anjali and I'm from Bihar, and currently I'm pursuing my BA from VKM, which is affiliated to BHU in geography honors subject, and I was having a quite interest in management field, so I've joined the management course here. Thank you.
Hello, good evening, sir. My name is Sanjoli, and good evening, everybody. So I've done my MCom from Banaras Hindu University itself, and right now I've completed my MEd. And look forward, I'm thinking like to do PhD in management itself. Like that's why I'm here to gain some learning from you all. Thank you. Yeah, guys, quickly you can name because they are in a habit of taking like a classroom name, and then people will say respond. Yes, sir. Yeah, Hardik sir, it is better to you take the name, so then people will respond. Otherwise, they are into this habit is still. Yes. Sakshi. Mansi. Good evening, sir. I'm Mansi Kumari. I'm from Ranchi, Jharkhand. Right now, I am pursuing B.Ed from Vasanta College, which is affiliated to Banaras Hindu University, and I'm looking forward for learning this management course so that I can get a view of it in terms of education, and I can help it in the education field. Thank you. Sakshi, are you there? Yes, sir. Good evening, sir. My name is Sakshi, and I am doing BCom honors from BHU, and I am doing this also course because they thought that it will be a great chance for me for my future career. Okay. Yes, Shivangsan. Sir, Shivang Patak. Sir, it's good to see you after a long time. Thank you. I have lost weight also. Yes. सर ऐसे कैसे हो गया? अरे ये एक लंबी कहानी है, भाभी को पूछना पड़े। तो मैं यहाँ पे हूँ सर, आपकी वजह से ही हूँ। अरे मैं आपके ये पोस्ट देखता रहता था यंग स्किल इंडिया, तो एक बार चलो रजिस्टर कर लेते। ओहो। So Shivang is with Panasonic. We worked together for a long time. Very nice gentleman, and he is looking after general administration at Panasonic, based at Daman. Very happy go lucky guy. Fun to be with. Thank you, sir. Pleasure. Yeah, Harshita ji. Good evening, sir. Harshita this side. I am working with Great White Electrical. Total 9.5 year experience, and last experience from Panasonic also. Yeah. Great White at Haridwar? Yeah, Great White at Haridwar. Okay. अरे अपने पुराने साहब भी वही हैं ना? काफी लोग होंगे सर अभी, लेकिन काफी मूव कर चुके हैं दमन के लिए। ओके। देवांशु साहब भी वही है ना शायद? Yes, Devanshu sir is at Great White Electrical. Plant head right now. Plant head. Okay. Yeah, he is plant head now. But others, I mean, please don't feel left out. Just a coincidence that there are people in close vicinity, but it doesn't mean that it's a coincidence that we all came together suddenly. Right, Harshita. You are in which department, you said? I'm with production and manufacturing experience. Oh. Praveen Singh ji.
यस सर. गुड इवनिंग. एक्चुअली Good अभी evening. तो 2015 में मैंने लेफ्ट किया था सर वहां से, हरिद्वार से. Okay. और उसके बाद में संजय Okay. ग्रुप है उसमें ज्वाइन किया था इन परचेज डिपार्टमेंट. एंड लास्ट 4 Okay. years I will lead the operation head. Okay. This is the But automotive we are at industry. Haridwar? No. I'm in Rudrapur, Uttarakhand also. Rudrapur. Okay. Yes. I belong from Bahedi, UP. Bahedi is a place Yes, where yes, I yes. did my schooling. Yes. I also discuss with you. Yes, we spoke. Right. So it's a small town in district Bareilly, close Yes, to Nainital, where I did my schooling. I did my intermediate from that place. So I have a UP connection. Then I moved to Gujarat for my graduation and further post-graduation. Who else is left? Yeah, Muskan Kaur. Or Akanksha. You can continue, sir. I think they may be busy with some other work, so you can continue with the subject. Hello, sir. Yes, Akanksha. Yes, sir. This is me, Akanksha Srivastav. I studied in B.Ed first semester from Vasanta College for Women, and I am from Chandauli. I want to use this course for conversation English to each other and build my confidence level. And so this is very useful for internship. Okay, sir. Thank you. Very good. Okay, anyone else left out? NABA, NABA, or Muskan? Good evening, everyone. Good evening, sir. This is Naba. I am also a literature graduate student from Banaras Hindu University. And currently I am doing digital marketing, working as a content writer for a third-party company located in New Jersey. And I applied for marketing and HR in UK, and I got the offer letter, but somehow with the scholarship portion, I had to drop my plan. So again, I'm planning to apply this year. So I thought कि एक बार यहाँ पर सीख लेते हैं before enrolling somewhere. So that's the reason I'm here. Okay. So many congratulations and all the best for what you got and what you are aspiring to. And of course, all these studies will definitely help. Okay. So now we know a bit about each other. You all know why you are here, and I also know why I am here. So now the fundamental question is, why HR? What you know about HR? Now this is a prerequisite to be in HR, that you have to speak. बोले है ना बोर बेचा है, ऐसा गुजराती में कहावत. मतलब अगर आप if you want to sell your product, you have to speak up. So HR is also a sales job where you are selling your organization, where you are selling your positions. It is a marketing job where you are convincing an employee to come on board with your organization. You know, and in both these activities, communication is the fundamental thing. So why HR? Because this will be a question when you will also appear for an interview as a fresher, the fresh HR graduate or postgraduate. This will be the first question, that why you chose HR as a subject. So those who are already employed or employed, they may recall or think that
HR वाले क्या करते हैं इतना जिसकी इनको जरूरत पड़ती है, बट अदरवाइज यस, बाकी लोगों के लिए it's a question that why choose HR as a subject. Yes, Anjali, you can try definitely. Sir, I believe that whatever मतलब जो भी सेल्स होती है, प्रॉफिट होता है, जो भी हम ग्रो करते हैं, that's because of our employees, or that because of the how we manage them. Like everybody have potential. It's on HR manager that how they take out the best efficient use of the resource, like human resource. तो HR इसलिए जरूरी है कि हम अच्छी लीडरशिप कर सकें, अच्छा पोटेंशियल निकलवा के हम बेस्ट आउटपुट दे सकें. उसके लिए I believe HR is useful to study. Okay. Anyone else? You're learning something, so there has to be some thought behind that. कि भाई ये क्यों? So can I try? Of course. So as we all know that every institution requires some manpower and management to run it properly and to use their resources in a well manner. So I think HR is a department which handle it very carefully and very efficiently. So I think the reason behind HR is the management or proper use of resources in any institution. Okay. So you mean resource management? Muskani say we can hire and train new employees, therefore you are in HR. Okay. Any other view? Any larger aspect of it? Those who are already working, they can also suggest. जो लोग already काम में हैं, 10, 20, 15, 20 years, 10 years in the industry. And then आपको लगता है कि ये एक ऐसा एरिया है जहाँ पे सीखने की जरूरत है, या ऐसा क्यों है? Maybe because like every person have different psychology, and we need to study and know एम्प्लॉय more. मतलब ये जो और डेफिनेटली कंपनी की ग्रोथ के लिए, क्योंकि एक अच्छा एम्प्लॉय देना एचआर में एक टास्क, बहुत मेनफुल टास्क है सर. कि ये कंपनी को एक दिशा देना, फ्यूचर के लिए दिशा देना, क्योंकि अच्छा एम्प्लॉय होगा तभी आप कंपनी ग्रोथ कर सकती है और एक अच्छे जो उसके टारगेट्स हैं या गोल्स हैं जो उसको अचीव. Alright. Any other view, any other perception? सर आई थिंक कंपनी में जितनी भी बेसिक चीजें होती हैं, एग्जीक्यूशन होता है, दैट इज डन बाय एचआर. वेदर इट्स अ पॉलिसी हो गया, बेनिफिट्स हो गए, स्ट्रैटेजीज हो गई, सेफ्टी एंड रिस्क मैनेजमेंट, ये सारी चीजें जो ऑर्गेनाइजेशन इवेंट, सारी चीजें एचआर देखता है. तो एचआर इज द बैकबोन ऑफ अ कंपनी. ओके. मतलब लोगों को डराने के लिए एचआर करना है. Somehow you can say that. Okay. So is डराना a right word? No, but to make it very simplified, we can say that
से इट, क्योंकि कभी कभी कॉम्प्लेक्स चीजें समझ में नहीं आती, तो बहुत रिलेटेबल चीजें बताओ तो लोग समझ जाते हैं। ओके, अगर इस एक वर्ड को बदलना हो तो क्या यूज कर सकते हैं? बदलना हो तो वी कैन यूज satisfied. Yeah, Discipline. employees are satisfied. Okay, discipline is okay. That's a good replacement. Any other word? HR is like mother. Thankless job. तो फिर तो नहीं करना चाहिए, ऐसा बताएंगे तो सब भाग जाएंगे। बोले एक बोला डराने के लिए है, राइट। एक बोला डराने के लिए है, एक बोला थैंकलेस जॉब है। ओके, तो जिनका मन हो रहा होगा वो भी चले जाएंगे, इसलिए मैं कह रहा हूँ कि हम कुछ अच्छा वर्ड यूज कर सकते हैं। सो व्हेन आई एम सेइंग डराना या इट्स लाइक ए मदर, जैसे कि मदर इंस के, जैसे कि घर पे भी हम देखते हैं कि मदर जो वर्क करती है वो थैंकलेस रहती है, वो इतना कुछ करती है फिर भी एप्रिसिएशन नहीं होता है, मतलब ऐसा काम। ओके, तो इट्स अ पोजीशन ऑफ इन्फ्लुएंस आई थिंक, है ना। तो डराना है तो लोग डर जाएंगे, नहीं है काम नहीं करना है इसमें। when you say a mother or when you say discipline, yes, it's an area, it's a department, it's a function of an organization that ensures कि चीजें कंट्रोल में रहे, मैनेजेबल हो। At the same time, yes, it's a thankless job, that is for sure, because 1600 लोगों को आप खुश नहीं रख सकते, it's a fact. So there will be criticism, there will be devil's advocate, but yes, it is a position of influence. आप चीजों को इन्फ्लुएंस कर सकते हैं, आप लोगों को इन्फ्लुएंस कर सकते हैं। So very well articulated and said. Now when we say HR as a career, to begin with, there are 3-4 points जिसको थोड़ा मोटा मोटा पहले समझ सकते हैं। One is job diversity. Now what does this diversity means? What is diversity? What is job diversity? So a wide area to explore with. Okay, now what all these wide areas can be? I'm in a first year of the BA, so I'm not having any deep knowledge about it. So I'm just guessing. Okay. No, but what you thought is correct. But if you can think about different areas, so, when you say different areas, what could be the different areas? So if you are running any company or institution, there are various posts, there are various jobs that they fulfill or they make it occur. So we can consider it in that way also. Okay. So when we talk about HR, there are various roles. Okay, as we proceed to get today in the session, there are various roles which HR can play. अगर आप प्रोडक्शन में जाएंगे, अगर आप सप्लाई चेन की बात करेंगे, अगर आप किसी और दूसरे फंक्शंस की बात करेंगे, अकाउंट्स या फाइनेंस की बात करेंगे, तो ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम चीजें ग्रेजुअली लिमिटेड होती जाएंगी। बट अगर आप प्रोडक्शन में हैं तो आप खाली मशीन देखेंगे, आप खाली प्रोडक्शन देखेंगे, है ना। आपकी स्ट्रेटजीज जो भी होंगी वो लिमिटेड होंगी रिलेटेड टू प्रोडक्शन एंड मैन पावर। अगर आप अकाउंट्स या फाइनेंस में हैं तो भी आपके पास में जो स्कोप है वो अकाउंट पेएबल का है, अकाउंट रिसीवेबल का है, या टैक्सेशन। तो इस प्रकार के देयर आर अदर ब्रांचेस इन HR. In every core area you can be a specialist. Okay, that is what the job diversity we mean to say when we take or when we decide to take HR as a career. When we'll proceed further आज के सेशन में, तो आगे देखेंगे क्या क्या ऑप्शंस अपने पास
हो सकते हैं एज एन HR लिटरेट, कहाँ कहाँ हम अपने आप को एक्सपांड कर सकते हैं या कहाँ कहाँ हम स्पेशलाइजेशन में जा सकते हैं. Second is job satisfaction. Now this is a relative term. Not every HR graduate or postgraduate is satisfied in the job, but yes, by and large, this is an area which gives you quite a good working satisfaction. क्योंकि ये एक ऐसा प्रोफाइल है जहां मैक्सिमम टाइम आप लोगों के साथ में कनेक्टेड रहते हैं, whether it is internal or external. Stakeholders is another term that we use generally in business context. So HR is a function where you are connected with your stakeholders, whether it is employees, sometimes customers, sometimes external agencies, nodal agencies, अब government authorities की बात करें या कहीं भी बात करें. So whenever you achieve something, whenever you speak with any of them and then you come to know that the work is done, any employee is confused, you helped him or her. So that gives an additional satisfaction. Therefore, this is the second reason of choosing HR as a career. Okay. Working with people, yes, we discussed that this is a function where maximum interaction is with people. और ऐसा कहा जाता है कि अगर आप अच्छे HR प्रैक्टिशनर हैं तो आपको लोगों के नाम याद होने चाहिए, आप उनको नाम से बुला सके चाहे कितनी भी बड़ी संख्या हो ऑर्गेनाइजेशन में. आई रिमेम्बर in my previous one of my employment, there was one gentleman in HR. He remembered employee code of every employee almost. Now, that is something commendable. आप नाम याद रख सकते हैं, लेकिन सबके एम्प्लॉय कोड याद रखना पहचान के, और आप उसको उसके एम्प्लॉय कोड से एड्रेस करो, यस 3351 ऐसा करके अगर बोलते हैं. So this is one area which makes you a good HR professional, because then you know people, then you know who is, what he is going through, how we can be and help within the periphery of policies. So working with people is another area that can make you think HR as a profession and as opportunity to progress. Of course, बहुत सारे branches हैं, there are various routes, है ना, within HR also बहुत सारे ऑप्शंस अपने पास अवेलेबल है. व्हेन वी टॉक अबाउट जॉब डाइवर्सिटी, तो आप एक रोल से दूसरे रोल में प्रोग्रेस कर सकते हैं. इवेंचुअली यू कैन रीच अप टू CHRO, चीफ ह्यूमन रिसोर्स ऑफिसर, बिजनेस हेड, HR हेड. तो प्रोग्रेस करने के लिए काफी सारी अपॉर्चुनिटीज हैं, या अलग अलग वर्टिकल के लिए भी आप अपने आप को एज एन एक्सपर्ट प्रेजेंट कर सकते हैं. So there are various verticals and various opportunities for progress. So there are other reasons also. As we progress through this session, one by one we can speak and discuss. कहीं ऐसा लगता है कि नहीं समझ में आ रहा है, बहुत ज्यादा भारी हो गया, हैवी हो गया, तो हम उसको डिस्कस कर सकते हैं, उसके ऊपर डिबेट कर सकते हैं. लेकिन इतना है कि ऑर्गेनाइजेशंस में HR को एक अलग पर्सपेक्टिव से देखा जाता है. ऑर्गेनाइजेशंस में दे सी HR एज ए लाख दुखों की एक दवा. इनके पास एक जादू की छड़ी है जो किसी भी अंदरूनी या बाह्य समस्याओं का समाधान ऐसा ही चुटकी बजा के कर देंगे. दिस इज द जनरल परसेप्शन. But sir, this is a good thing कि एक्सेप्ट लोगों को आपसे जो है ज्यादा जुड़े हुए रहते हैं, इसलिए अपेक्षाएं ज्यादा होती हैं. अपेक्षा, हाँ, उनको हमसे बहुत ज्यादा एक्सपेक्टेशंस हैं. और ऐसा मतलब ऑर्गेनाइजेशंस का ऐसा मानना है कि अगर आप HR में हैं तो आपके पास में वो सारे स्किल्स हैं, वो सारी एबिलिटीज हैं जो उनकी समस्याओं को दूर कर सकती हैं. हम उसको नाम कुछ भी दें, है ना, बट फंडामेंटली हमको पता होना चाहिए कि हम क्या कर रहे हैं. एट द सेम टाइम किसको क्या बताना है या कहना है वो भी हमको एज ए HR प्रोफेशनल पता होना चाहिए. आप ड्राइव कर रहे हो, रास्ते में एक बेवड़ा
दारू पी के आपकी गाड़ी के खड़ा हो जाता है। तो एक तरीका ये है कि आप कांच उतार के उसको बोले कि भाई जरा साइड में हो जा। दूसरा तरीका ये कि आप खुद नीचे उतरे, उसको 2 थप्पड़ लगाया, कान के नीचे साइड में हटाया, गाड़ी लेके निकल गई, है ना। सोफिस्टिकेटेड लैंग्वेज में हम बात करेंगे तो दिस इज इंटरपर्सनल स्किल, राइट। आपने उस समस्या से छुटकारा कैसे पाया या दिलाया, सो इवेंचुअली इट इज योर इंटरपर्सनल स्किल्स। बट क्या बेटर हो सकता है, दैट वी मस्ट नो। सो एचआर एज ए प्रोफेशन is challenging, rewarding and interesting. तो इसमें खतरे भी हैं, इसमें उतने लाभ भी हैं, लेकिन उसके साथ साथ में इंटरेस्टिंग भी है, तो मजेदार भी है, मोनोटोनी नहीं है। हर सुबह आपके पास कोई ना कोई नई समस्या मुंह उठाए खड़ी है, या कोई ना कोई नया व्यक्ति कोई ना कोई समस्या लेके आपके पास रोज सुबह हाजिर होगा। ग्रीवियंस हो सकता है, ऑपरेशनल डिफिकल्टीज हो सकती हैं, पर्सनल इश्यूज हो सकते हैं, बिजनेस इश्यूज हो सकते हैं, है ना। योर बिजनेस में डिमांड कि मुझे 300 आदमी चाहिए, आप जैसे तैसे अरेंज करते हैं, अगले हफ्ते बोलता है नहीं यार काम कम हो गया, इनको हटाओ। सो आई हैव टू हायर, आई हैव टू ले ऑफ, एचआर का लैंग्वेज। सो इट इज नॉट ओनली सेलिब्रेटिंग बर्थडेज, it is not only celebrating Holi, Diwali, Dashera, Navratri as a festival, इवेंट बनाना और ये सब करना ही खाली आचार नहीं है। तो बहुत सारे चैलेंजेस भी इसमें शामिल हैं, और ये सब मिलके ही इसको एक इतना इंटरेस्टिंग एरिया या फंक्शंस बनाते हैं, है ना। जस्ट गिव मी अ मिनट, जस्ट गिव मी अ मिनट। Yes. So these are few of the things which HR as a career to choose. Okay. Now, how old this HR is? ये ताजा ताजा डिपार्टमेंट है या बहुत पुराना है? Any idea? So since it is handling a vast diversity in a company, so it must be an old department. It will not be a new one, in my point of view. Okay. तो कितने साल के आसपास होगा इसका? if we say old, 10 साल, 15 साल, 20 साल? जैसे भगवान ने अवतार लिए ना, ऐसे इसके भी काफी सारे अवतार हुए, एचआर के भी। तो मे बी पहले हम किसी और नाम से जानते होंगे, 20 साल पहले, 25 साल पहले एचआर अभी होगा, लेकिन होगा ये जरूर बहुत पुराने टाइम से, मे बी 1000 years पहले भी एचआर के काम होते होंगे, बट अब एचआर हो गया है नाम इसका।
तो ये ऐसा तो है नहीं कि आजकल की बात है, इट इज वेरी ओल्ड कॉन्सेप्ट। अलग अलग नाम से इसको जानते होंगे, दैट्स परफेक्ट, व्हाट यू सेड इज एब्सोल्युटली करेक्ट, that there were different word used, okay, but yeah, it's an ages old thing. आज हम इसको ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट या ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट, HRM, HRD या मास्टर इन बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन इन ह्यूमन रिसोर्स एज एक्सपर्ट, अलग अलग नाम से जानते हैं। HRBP, ह्यूमन रिसोर्स बिजनेस पार्टनर, इज द लेटेस्ट in this entire list, okay, but then it is an ages old thing, 1700 before Christ. So human management or personal management, this is a very old terminology in the history. कायदे कानून की व्यवस्था तो सदियों से है ना, ये तो ऐसा है नहीं कि आजकल में पैदा हो गई। तरीके अलग अलग थे, मनवाने का तरीका अलग अलग था, but then it was there. So the Code of Hammurabi, Babylonia, this is the oldest written text which talks about rules and regulations or the policies. So generally, as Shivang mentioned, कि discipline एक ऐसा एरिया है जहाँ HR का जरूरत है, या अब influence की बात की, किसी ने डराने की बात की, तो this all this can be possible through policies or actions or acts, something. So Code of Hammurabi is the oldest legal text जो मिलता है इतिहास में, जहाँ पे कायदे की व्यवस्था के बारे में कहा गया है, और इसमें करीब 282 rules were defined in this code. तो जहाँ पे फाइन और पनिशमेंट, both the things are defined. अभी हम भी करते हैं कभी कभी, काम नहीं करेगा तो टर्मिनेट कर दो, डिसमिस कर दो, सस्पेंड कर दो, ओके, या पेनल्टी, एक दिन का पगार काट लो। So all these things are ages old. Now over a period of time, जैसे जैसे चीजें चेंज होती गई, बिजनेस बदलते गए, रिवॉल्यूशन आता गया, इंडस्ट्रीज चेंज होती गई, इंडस्ट्रीज का टाइप चेंज होता गया, वैसे वैसे इन सब चीजों में बदलाव आने लगे। कुछ नीड बेस्ड थे, कुछ इनिशियली फैंसीज थे, ऐसा हो सकता है कि ऐसा करना चाहिए, कि ऐसा कर सकते हैं, एंड देन ग्रेजुअली दे बिकम ए प्रोसेस, दे बिकम ए पार्ट ऑफ एनी ऑर्गेनाइजेशन टू डेवलप। तो इनिशियली हमको खाली आदमी चाहिए थे, फिर लगा कि यार आदमी लेने से नहीं होगा, जैसा चाहिए ऐसा तो मिलता नहीं है, क्या करना चाहिए, ठीक है, तो जैसा मिलेगा उसको लेंगे, और उसको थोड़ा सा पढ़ा लिखा के टीप टाप करके अपने काम के लिए बना लेंगे, ठीक, ओके, तो कौन करेगा? प्रोडक्शन के पास तो टाइम नहीं रहता है, सप्लाई चेन वाले को मतलब नहीं है, HR वाला पढ़ाएगा, क्योंकि ह्यूमन रिसोर्स उसको संभालना है, ओके, तो आदमी लाने के बाद में उसको प्रिपेयरिंग का काम दिया है। So that's how it became training and development as a function. Fine. अब ज्यादा पढ़ लिख गया, अच्छा काम करने लगा, तो दूसरी कंपनी वाले बुलाने लगेंगे, पता चला कि भाई ये एक अच्छा रिसोर्स है, इसको काफी चीजें आती हैं, तो बाजू वाला बोलेगा भाई इसको उठा लो, वहां कितना मिल रहा है? 100 रुपया, ठीक है, 110 दे देंगे, ले लो। तो थोड़े दिन ऐसा हुआ तो कंपनी लगा यार तो गड़बड़ है, अपने यहाँ सीखता है, बाद में चला जाता है, क्या करना चाहिए? तो रिटेन करना चाहिए। रिटेंशन करके एक टर्म आया, मतलब इसको रोको, इसको जाने मत दो। तो रिटेन करने के लिए क्या करना पड़ेगा? तो उसको ज्यादा पैसा देना चाहिए, ओके, तो उसके लिए क्या करेंगे? तो परफॉर्मेंस अप्रेजल करेंगे। कौन करेगा? तो ह्यूमन रिसोर्स का काम है ना, HR वाले। तो देन इट एडेड टू दैट परफॉर्मेंस अप्रेजल। अच्छा, हर आदमी तो अच्छा काम नहीं कर रहा होगा, कोई गड़बड़ भी कर रहा होगा, कोई शैतानी करता होगा, कोई मारामारी कर दिया, गाली गलौज कर दिया, क्या करना पड़ेगा? तो इसके खिलाफ
अनुशासनात्मक कार्यवाही की जाएगी, डिसिप्लिनरी एक्शंस। कौन करेगा? तो आदमी कौन संभालता है? एचआर करेगा। दैट इज हाउ ग्रेजुअली थिंग्स कीप्स ऑन चेंजिंग। तो ये सब चीजें डिटेल में व्हेन वी विल बी गोइंग थ्रू द सब्जेक्ट वी विल स्टडी, बट जस्ट टू हैव एन इम्प्रेशन एंड जनरल ओरिएंटेशन कि ग्रेजुअली चीजें धीमे धीमे ऐड होती है। एंड देन ऑल द फंक्शंस, जितने भी एक्टिविटीज थी जो पीपल रिलेटेड है, लोगों से जुड़ी हुई है, वो सारी ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट के गैमेट में आती है, उसके अम्ब्रेला में आ गई। सो फ्रॉम हायरिंग टू फायरिंग, आदमी को लेने से लेके उसके जाने तक जो पूरा एम्प्लॉय लाइफ साइकिल है, उसका एडमिनिस्ट्रेशन, मैनेजमेंट, मॉनिटरिंग, वो सब ह्यूमन रिसोर्स के अंदर है। बट देन इट इज नॉट टुडेज कॉन्सेप्ट, इट इज अ वेरी ओल्ड कॉन्सेप्ट। अर्लियर, अभी जो हम देख रहे हैं ह्यूमन रिसोर्स, इसका पुराना जो रूप था दैट वाज पर्सोनल मैनेजमेंट, है ना। तो उसमें ये सब ट्रेनिंग वेनिंग कुछ नहीं था। आदमी आएगा, आप उसको रख लो नौकरी पे, उसका अटेंडेंस वेटेंडेंस देखो, उसका एक फाइल मेंटेन करो, पगार वगार होना चाहिए, पंचिंग कार्ड होते थे, उसमें लिख दिया ये आदमी इतने दिन आया था, एंड ऑफ द मंथ उसका सैलरी हो गया, दैट्स ऑल। तो वहां बहुत ज्यादा चीजें इन्वॉल्व नहीं होती थी। देयर वाज अ पर्सनल ऑफिसर या पर्सनल मैनेजर who would look after basic attendance leave management of an employee. कितना पगार मिला, कितना काटना चाहिए, कभी ओटी दिया, क्या किया, दैट्स ऑल, है ना। कुछ तो एक्ट्स भी ऐसे हैं जो 100 साल पुराने हैं। 1923 का एक्ट है, आई थिंक द वर्कमैन कॉम्पनसेशन एक्ट, आई थिंक इट इज द ओल्डेस्ट legislation still applicable now, 1923, it is 2023. So 100 years old acts means things were there in the practice in those days also. अभी उसके रूप थोड़े से बदल गए because of the organizational changes. है ना, हमने कई बार सुना है, मजाक में भी बोलते हैं ना, कभी कोई ऐसा इंसिडेंट होता है तो यार इसके हाथ काट देने चाहिए, इसके पैर काट देने चाहिए, इसकी आंख फोड़ देनी चाहिए, ऐसा बोलते हैं ना, खून का बदला खून। तो इस तरह के पनिशमेंट्स हैं। अभी हम जो हम्बुराबी की बात कर रहे हैं, इन दैट हम्बुराबी देयर वर वेरी हार्श पनिशमेंट्स, जैसा कसूर वैसी सजा। अगर ऐसा किया तो ऐसा होगा, ऐसा किया तो ऐसा होगा। और उस टाइम पे जो चीजें थी उसको रेफरेंस में लेके लिखा, मतलब अगर आप कोई कैटल चुरा लेते हैं, बैल चुरा लेते हैं, तो आपको उसका 30 गुना पैसा देना पड़ेगा, है ना। द पनिशमेंट वाज 30 टाइम्स ऑफ द वैल्यू। एंड ऑलमोस्ट ऑल द थिंग्स। तो उस टाइम पे सोसाइटीज में जो भी चीजें प्रचलित थी, जो भी चीजें प्रिवेल कर रही थी, उसके हिसाब से उसमें कुछ 280, 290, 282 टू बी प्रिसाइज कायदे कानून लिखे थे। और ऐसी कुछ पॉलिसीज आजकल हमको ऑर्गेनाइजेशन में भी देखने को मिलती है। आप जहां पढ़ रहे हैं, आप जिस कॉलेज में हैं, वहां भी कुछ ना कुछ ऐसे प्रोटोकॉल होंगे जो आपको फॉलो करने पड़ते होंगे, है ना। द लीस्ट इज योर टाइम टेबल विच इज ऑल्सो प्रोटोकॉल ना। इतने बजे आना है, इतने बजे जाना है, इतने बजे प्रैक्टिकल होगा, ये एग्जाम का डेट है, राइट। Many things would be policy driven. So all these policies or all these acts generally taken care by administration. Colleges में शायद HR as a function ना हो, तो वहां पर्सनल डिपार्टमेंट होगा, वहां एडमिनिस्ट्रेटर होंगे जो आपकी लेखाकार या लिपिकार, जो आपकी इन सब चीजों को संभाल के रखते हैं। कौन सा स्टूडेंट है, क्या उसका नंबर है, उसकी फाइल्स क्या है, उसका सर्टिफिकेट, है ना, LC एंड ऑल दिस थिंग्स, library details and everything. So similar thing is with the organization. So it is not very new, it is an ages old concept, but yes, now it is in a different shape. Okay. You are currently going through the basic orientation, okay, and you will be going through all the subjects. I think HR, finance, supply chain, operations, सभी कुछ के आपके 2-2, 3-3 सेशंस अभी इन द इनिशियल डेज होंगे। तो दैट विल हेल्प यू टू अंडरस्टैंड कि अगर मुझे चेंज करना है तो मैं कहाँ जा सकता हूँ, है ना।
So in this also we will just try to sum up about human resource management. Why? क्यों हमको ये जरूरी है? तो अलग अलग टर्म हम यूज कर सकते हैं. HRD. HRD, it can be human resource department or human resource development. ठीक है. HRM, human resource management, which covers the HRD can become a part of human resource management. Okay. दो तो straight differences हैं HR में. One is HRD, that is human resource development या core HR, and दूसरा है HR operations. Operations in on the routine activities. HRD is on the developmental activities. Right? So salary processing, compliances, labor management, this all goes in the operation part, day to day. And employee talent acquisition, मतलब hiring, talent development, training and development, OD या OB, organizational behavior, organizational development, performance management, या succession planning, ये जो भी activities है, this becomes HRD या core HR, जहाँ development से जुड़ी हुई चीजें. तो ये दो direct streams हैं. और इन दोनों में जितने भी वर्ड अभी यूज किए, ये अपने आप में एक एरिया ऑफ स्पेशलाइजेशन हो सकते हैं. So these are few points that can help you to decide whether to go in HR or not. Why work in HR? एक एडवांटेज ऐसा है इसका कि ये इंडस्ट्री स्पेसिफिक नहीं है. मतलब अगर मैं केमिकल में हूं तो मैं खाली केमिकल में ही जा सकता हूं, एज HR प्रोफेशनल नो, है ना. तो एन HR प्रोफेशनल, फॉर दैट मैटर HR, फाइनेंस, ये जो सपोर्ट फंक्शंस हैं, इनके लिए द वर्ल्ड इज ओपन. आप कहीं भी काम कर सकते हैं. आपको ऐसा नहीं है कि मैं एक ही टाइप की इंडस्ट्री में पूरी जिंदगी मुझे निकालनी पड़ेगी. So there is no limitation. As I said that I work with chemical industries, I work with engineering plastic manufacturing company, I'm working with a utility provider company, I work with manufacturing companies. One was electrical manufacturing, one was high-end technology driven company. So for HR, industry type is not a constraint, है ना. Preference हो सकता है, yes, on a senior position there can be preference that a pharma company में अगर उनको एक जनरल मैनेजर HR चाहिए तो उनका प्रेफरेंस हो सकता है कि वो आदमी को फार्मा का एक्सपीरियंस हो तो अच्छा है. बट इसका मतलब ये नहीं है कि कोई आदमी जो इंजीनियरिंग में काम कर रहा है, केमिकल में काम कर रहा है, उसको फार्मा में HR में अपॉर्चुनिटीज नहीं है, ऐसा नहीं. इलेक्ट्रिकल, सिविल, मैकेनिकल, ओके, ऑल दीज आर फिक्स्ड प्रोफाइल्स. So production manager cannot switch to a different line unless he has extraordinary potential or an extraordinary proven track record. तो अगर आप एक इलेक्ट्रिकल एसेसरीज मैन्युफैक्चरिंग में काम कर रहे हैं और आपने 12, 15, 20 साल उसमें काम कर लिया, तो उस इंडस्ट्री टाइप से बाहर निकल के दूसरी इंडस्ट्री टाइप में जाना मुश्किल है. इट इज नॉट एन इजी टास्क टू चेंज द इंडस्ट्री टाइप बिकॉज ऑफ योर लेंथ ऑफ सर्विस, or because of expertise, or because of your working, which is not the case with HR. Okay, so you can work anywhere. Number 2, variety of work. बहुत काम है करने के लिए, अलग अलग. तो जो लोगों ने, जिन्होंने काम किया है इंडस्ट्री में, जो HR के साथ काम कर रहे हैं, जिन्होंने देखा है, दे में कंफर्म बहुत कुछ है करने के लिए. जो आपकी लाइकिंग्स हैं या जो आपका एरिया ऑफ एक्सपर्टाइज है या बिजनेस नीड्स, उसके हिसाब से आपके पास में बहुत सारे काम है करने के लिए. तो इट इज नॉट ए मंडेन जॉब, मतलब 9 to 5 रूटीन एक्टिविटी रोज यही करना है, ऐसा नहीं है. ऑल्दो योर जॉब डिस्क्रिप्शन इज डिफाइंड, आपको क्या करना है डिफाइंड है, बट आपके पास में बहुत सारे रोज नए नए काम तो हैं करने के लिए. किसी दिन कैंटीन में सब्जी में नमक ज्यादा है, किसी दिन कुर्सी ठीक नहीं है, किसी दिन बस पंचर हो गई, है ना, किसी दिन पंचिंग मशीन नहीं चल रहा है, किसी दिन बहुत जोर से बारिश हो रही है. तो आपके पास बहुत सारी एक्टिविटीज हैं जहाँ
आपको रोज रोज ना कुछ दिमाग लगाना ही है. सो ये आपको बोर नहीं होने देता. इट विल नॉट हेल्प यू टू सेटल. ये वैरायटी ऑफ वर्क. ग्रोइंग इंडस्ट्री, ग्रोइंग इसलिए है क्योंकि हम कितना भी इंडस्ट्री 4.0 की बात करें, जहां भी ह्यूमन इन्वॉल्व है वहां पर ह्यूमन रिसोर्स के लिए आपने को एक आदमी चाहिए. राइट. सो एक ऐसा एरिया है जहां पे रिसीजन या स्टैग्नेंसी आने की प्रोबेबिलिटी कम है. ऐसा नहीं कि नहीं है, बट कम है. सर्वाइवल के लिए स्किल सेट चाहिए. यू नीड टू रिमेन अपडेटेड. सो दैट इज इंपॉर्टेंट, वो चाहिए. बट अदरवाइज इट इज एन इंडस्ट्री विच इज स्टिल इन डिमांड. और जिस तरह से इंडस्ट्रियलाइजेशन बढ़ रहा है, जिस तरह से नए एवेन्यूज ओपन हो रहे हैं, वो एरिया कोई भी हो, इंडस्ट्री टाइप कोई भी हो, सेक्टर कोई भी हो, लेकिन वहां पर जहां लोग हैं वहां उनको संभालने के लिए कोई ना कोई तो चाहिए. उनको संभालने के लिए, उनको डेवलप करने के लिए, उनको कंट्रोल करने के लिए, मॉनिटर करने के लिए आपको लोग तो चाहिए. अभी एक आदमी सारे काम कर सकता है या हर काम के लिए अलग अलग हो सकता है. इट ऑल डिपेंड्स ऑन द इंडस्ट्री टाइप, ऑर्गेनाइजेशन, उसका पेबैक कैपेबिलिटी, कि हमको कितना डाइवर्स टीम रखना चाहिए. दिस इज अ डिपार्टमेंट विच कैन मेक एन इम्पैक्ट दोनों तरह से, बिजनेस पे भी और लोगों पे भी. आप लोगों को अच्छे डेवलपमेंट एरियाज देंगे, पीपल विल डेवलप. आप बिजनेस को अच्छे सजेशंस देंगे, बिजनेस विल डेवलप, एंड विदाउट एनी बायस. So if you are neutral, if you are good in your judgment and analytics, it will definitely make an impact on both business as well individuals. पैसा है, great earning potential, good well paid sector. At the same time आपके पास में इसमें ये भी पॉसिबिलिटीज हैं कि आप आपके लिए खुद का एक अलग एवेन्यूज भी जनरेट कर सकते हैं, है ना. इट हैज अ गुड अर्निंग पोटेंशियल. फ्रीलांस ट्रेनर, एचआर कंसल्टेंट, एसोसिएट्स, रिटेनर्स. सो यहाँ ऐसा नहीं कि 58 के बाद में आपको कोई रखेगा नहीं. सो इवन आफ्टर योर रिटायरमेंट और पोस्ट रिटायरमेंट, यू आर स्टिल अ रिसोर्स फॉर द इंडस्ट्रीज और फॉर द बडिंग पीपल. सो जो लोग नए आ रहे हैं उनके लिए आप एक रिसोर्स हैं. तो इट हैज ए लॉन्गर कैरियर. जैसे मेडिकल प्रोफेशन है, उसमें एज इज नॉट अ फैक्टर. आप जितने बूढ़े होते जाते हैं उतनी आपकी वैल्यू बढ़ती जाती है ना. अच्छा डॉक्टर है, इसके पास जाएंगे तो बचने के चांसेस ज्यादा है. ऐसा एचआर का भी है. तो आप जितने सीजन है उतना वैल्यू बढ़ेगा, है ना. तो एक्सपीरियंस विल help you earn more respect, credibility. Then लोगों को डरा सकते हैं या पोजीशन ऑफ इन्फ्लुएंस, आप लोगों को प्रभावित कर सकते हैं. चांसेस टू चेंज लाइव्स, दिस इज इंपॉर्टेंट. एचआर इज टर्म्ड एज चेंज एजेंट ऑल्सो. तो एक वर्टिकल है एचआर का, ओबी एंड ओडी, ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर या ऑर्गेनाइजेशनल डेवलपमेंट. ओके. और उसमें एक टर्म यूज होता है इंटरवेंशन. तो कुछ चीजें ऐसी हैं जो क्विक फिक्स हैं. मतलब अगर कहीं दो लोगों के बीच में झगड़ा हो गया तो उसके लिए इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट में लिखा है कि क्या करना है ना, क्या प्रोसेस करना है, कैसे करना है, उसको हटा के बाहर, क्या पेनल्टी लगेगा, क्या केसेस चलेगा, कैसा होगा. उससे ऊपर चला गया तो कोर्ट बैठी है. लेकिन अगर उस कंपनी का कल्चर चेंज करना है, आजकल बहुत सारे मर्जर एंड एक्विजिशन होते हैं. जैसे व्हेन वी वर वर्किंग, इट वाज अ कंपनी कॉल्ड एंकर इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड, 50 साल पुरानी कंपनी, टेकन ओवर बाय जापानीज ऑर्गेनाइजेशन कॉल्ड पैनासोनिक. नाउ देयर इज अ कल्चरल शिफ्ट, इट इज अ चेंज ऑफ वर्किंग पैटर्न. काम करने का तरीका अलग है, आपके सिस्टम्स बदल जाएंगे, आपके प्रोसेसेस बदल जाएंगे. हु विल स्टीयर? सो एचआर इज जनरली टर्म्ड एज अ चेंज एजेंट. सो ये जो भी कल्चरल शिफ्ट है उसके लिए एचआर प्लेज एन इंपॉर्टेंट रोल. सो एचआर ऑर्गेनाइजेस वेरियस सेशंस, एचआर विल इंट्रोड्यूस डिफरेंट पीपल, एचआर विल हैव लेटरल हायरिंग्स. मतलब 50 साल पुरानी कंपनी, लोग तो काम कर ही रहे थे. व्हेन देयर इज एन एक्विजिशन, व्हेन देयर इज अ मर्जर, so there is a amalgamation of two different
ऑर्गेनाइजेशंस, तो दोनों का पॉलिसी अलग होगा, काम करने का तरीका अलग होगा. इंडियन वाज अ डिफरेंट वे ऑफ वर्किंग, जापानीज इज डिफरेंट वे ऑफ वर्किंग. हम काम करने के बाद सोचते हैं कि साला ये गड़बड़ हो गया, ऐसा नहीं करना चाहिए था. बट वो लोग पहले ये सोचते हैं कि इसमें गड़बड़ नहीं हो, इसलिए क्या क्या करना चाहिए. सो 180 डिग्री डिफरेंस है ना. हमारे लिए प्लानिंग जैसा कोई वर्ड ही नहीं है, और उनके लिए बिना प्लानिंग के अलावा कोई वर्ड नहीं है. सो 80% फोकस ऑन प्लानिंग, हमारा 80% फोकस ऑन एग्जीक्यूशन. पहले कर डालो, बाद में देखेंगे ठीक हुआ कि नहीं हुआ, विच वॉज नॉट द केस विद देम. अगर आप 1 मिनट लेट होते हैं तो आपको बोल देता है कि यू आर लेट एंड बिकॉज ऑफ यू ये जो 20 लोग बैठे हैं 20 मिनट्स हैव बीन वेस्टेड. और हमको लगता है ठीक है, अरे चाय पी के चलते हैं ना, क्या जल्दी है. Now, when such circumstances arises, HR is a pivotal department. So change agent, chance to change lives and for the organizations as well. It also helps developing people. You can suggest, you can advise. कुछ बिजनेस नीड हो सकती है, कुछ आपके अपने इनपुट हो सकते हैं, जिससे लोगों का डेवलपमेंट तो इन एनी केस होगा ही. अगर ऑर्गेनाइजेशन ग्रो कर रहा है तो भी लोगों को ग्रो करना पड़ेगा, नहीं कर रहा है तो भी लोगों को ग्रो करना पड़ेगा, क्योंकि आपको कभी कभी उनको आउटसोर्स करना पड़े, है ना. This we already spoke about. Each work day will be different. रोज कुछ ना कुछ नया पंगा तो है ही. आज लोग ज्यादा आ गए हैं, आज लोग कम आ गए हैं. आज इसको बिठाओ, आज इसको उठाओ. कोविड हो गया, 50% लोगों से ही काम चलाना है. Challenge. It was a major challenge for HR people during this, pandemic to run the industries. And they were the first person to report. लोग आए या नहीं है, आपको आना है, बिकॉज यू हैव टू इंश्योर कि जब भी लोग आएंगे देयर हेल्थ इज टेकन केयर, देयर सेफ्टी इज टेकन केयर. आपको 100% आउटपुट 50% लोगों में देना है. कोविड प्रोटोकॉल डेली चेंज हो रहा है, रोज कुछ ना कुछ नया आ रहा है. So with available resources, you have to manage the entire show. Who would do? And then yes, HR, it was a critical phase for all of them. Marking करो, odd out, एक बैठेगा एक खड़ा रहेगा, एक साथ नहीं लाइन में लग सकते. 50 सीटर बस है तो खाली 25 लोग ही आएंगे. And as the guidelines changes, you have to immediately change it. There are people who are watching. आप बड़ी ऑर्गेनाइजेशन है आपकी, तो लोग देख रहे हैं आपके बिहेवियर्स को भी. कोई फॉलो भी करेगा, कोई क्रिटिसाइज भी करेगा, कंप्लेन भी करेगा. Now you are otherwise running on 50% manpower, and out of that 50% also, if someone complains and your 2 bus are detained, your 50 workers could not reach to office. It's a production loss, right? So it's a challenge. Now here licensing HR करेगा, लोगों को लाना HR करेगा, उनको कोविड नहीं हो जाए उसका ध्यान HR रखेगा, सबको टीका लगा कि नहीं HR देखेगा, कैंटीन में भीड़ नहीं कर रहे हैं HR ध्यान रखेगा, बस में चढ़ते रहे हम आगे पीछे नहीं कर रहे हैं HR ध्यान रखेगा. So eventually it is human resource department which will be responsible for human resource management, and it is not an easy job, that is for sure. As I said कि खाली बर्थडे सेलिब्रेट करना, इवेंट करना, दिवाली के दिन रंगोली बनाना, ये इतना आसान नहीं है. When we say that I want to do HR because I like people, मुझे लोग अच्छे लगते हैं इसलिए मैं HR में जाना चाहता हूँ या चाहती हूँ. Believe me, if that is the reason, एक टाइम ऐसा है जब आपको लोग बिल्कुल अच्छे नहीं लगेंगे और लगेगा कि कहाँ आ गया मैं. रोज ये 1600 लोगों को मुझे जवाब देने का, और इन 1600 लोगों के सामने मुझे मैनेजमेंट में भी जवाब देना, right? So it is also a skilled task. Your interpersonal skills, your communication skills, all these things will get polished. Your network, interacting with people, bringing solutions which are not very costly. All this becomes a
challenges बोलो, interesting areas बोलो, या आपको जो word इसको use करना है करो. But yes, these are the areas for HR to look after throughout the HR journey and for an employee's life cycle. So there are 7-8 areas, 7-8 points why you should work in HR. As a HR professional, क्या क्या होना चाहिए? See, I'm taking you through with these basics. उसका दो पर्पस है. पहला, you get acquainted, है ना, with the topic, with the subject. At the same time, you also have the insight to further define and decide कि भाई क्या कर सकते हैं, आगे जाना है कि नहीं जाना है. Is it going to help me or not? Okay. Now, what could be the skill sets required? अगर मुझे HR में जाना है, if I want to become an HR professional, basic क्या क्या होना चाहिए अपने अंदर, है ना? So when I say skill, there is a word used, competency, in HR terminology. Okay, and very widely used term, skill and competency. So competency is a combination of three things. We call it as ask, ASK, या KSA. It is KSA या ASK, आप जैसा याद रख सकते हैं. K stands for knowledge, S stands for skills, and A stands for attitude or ability. Okay, so these three things makes it one expertise, yeah, competence, and it's a wide subject in HR itself. So when we say HRD, in HRD, this competency management itself is an area of expertise. So competency framing, competency framework, competency mapping, gap identification, and how to improve upon. So when you have the knowledge, when you have the skills and ability to apply both these things at the workplace, makes you competent. You all follow cricket? Cricket? Yes, sir. You all follow? Yes, sir. Okay. So why Virat Kohli is Virat Kohli? Why Sachin Tendulkar is Sachin Tendulkar? They have their own quality and different quality to deal with the situation and to deal with the matches, we can say. So why Shrishant is not as sustained? So everyone has their own quality to play or to handle. I'm not getting the right word to comprehend it. No, what you're saying is correct. Everyone has their own quality, है ना? लेकिन skill also. Sorry? Skill. Okay. ये जितने भी 11-12 खेलते हैं, इसमें कोई ऐसा है जिसको पता नहीं होगा कि क्रिकेट का कायदा कानून नहीं पता होगा? So everyone knows it. Everyone knows ना कि ऐसा मेरे पैर पे स्टंप के आगे खड़ा हूंगा और पैड पे बॉल लगेगा तो आउट हो जाऊंगा, एलबीडब्ल्यू. गेंद हवा में होगा, कोई पकड़ लेगा तो उसको कैच बोलते हैं, आउट हो जाऊंगा, है ना? ये इधर जाएगा तो वाइड है, इधर जाएगा तो नो है. सब they know all the rules and regulations. So they have the knowledge. All 11-12 जितने भी खेल रहे हैं, they all have the same knowledge, right? They all have the same skills. No, sir. They have the knowledge, but the skill they are specific. Yeah, or we can say that they are more proficient in some of the one or like बोल सकते हैं कि उनके पास सारे स्किल है, बट वो किसी एक चीज में ज्यादा एक्सपर्ट है. जैसे कोई बॉलिंग में अच्छा है, कोई बैटिंग में अच्छा है, कोई फील्डिंग में है, कोई कीपरिंग में है.
So they know every rule and regulation, they know everything about cricket, but they are skilled in one specific area. Perfect. So एक ऑलराउंडर उसको तो सब आता है, बैटिंग में आता है, फील्डिंग में आता है, बॉलिंग में आता है. इज ए प्रेफर्ड रिसोर्स? 11 के 11 ऑलराउंडर नहीं खिलाते क्यों? Why it is so that all 11 are not all-rounders? So it will be a risk-taking job, because we need experts also. We cannot rely on the all-rounder, because sometimes they play well, sometimes they are not able to do it. So we have to make sure that we have. Yes. Perfect. So it's a combination. It's a combination of everything, right? So skill is something that by acquiring the knowledge, when you put that knowledge into practice, you do some actions. आप जब एक्शन करेंगे तो किसी एक एरिया में आपको एक्सपर्टाइज चाहिए, और उस एक्शन को बार बार रिपीट करने से यू बिकम अ स्किल्ड रिसोर्स. सो देयर इज वन एक्सपर्ट बैट्समैन, देयर इज वन एक्सपर्ट बॉलर, बट देन देयर इज वन एक्सपर्ट फील्डर. तो उसका टीम में जगह इसीलिए जॉन्टी रोड्स प्लेड इन साउथ अफ्रीकन टीम नॉट बिकॉज ही वाज एन एक्सेलेंट बैट्समैन, है ना, बट दैट रबर बॉय he played just because of his fielding. Point में या गली में खड़ा रख के he would save 25-30 runs for the team, which is his contribution. So that is how an individual is required. And then you have the skill, you know, you have all the knowledge, but if you can't convert this skill and knowledge into a good performance, you have to eventually stay out. That is your ability. है ना? Vinod Kambli, for example, he knew everything in cricket. He developed that skill set, but eventually he was not able. इतने ये सब चल जाएगा. हाँ सर, चल जाएगा. पहले वो धूप है, ऐसा थोड़ी फोटो चाहिए. हाँ धूप है सिंह साहब. बैकग्राउंड देखो. जूम वगैरह में भी ऐसा तो है ना, कुछ ऐसा बच्चे होते हैं शैतान बैक बेंचर जैसे, जैसे नॉर्मल क्लास में होता है, ऐसा पीछे बैठ के मूंगफली खाते हैं ना, ऐसे यहाँ भी है. पता नहीं कौन सुन रहा है कौन नहीं सुन रहा है, बट एनीवे. So if you don't have that ability, you know you are out from that playing 11 or playing 12, है ना. So all this makes a competent resource. So now when we say skills, क्या क्या होना चाहिए as an HR professional, क्या क्या हमारे पास में होना चाहिए, what are the skills that an HR professional should have. Okay, यही होना चाहिए ऐसा नहीं, but just an idea. The very first thing is I'll start with this this ethical and integrity. This is the very important area for an HR professional. क्यों? Because ऑर्गेनाइजेशन या लोग आपको एक लैंप पोस्ट या लाइट पोस्ट की तरह देखते हैं, और अगर मैं बीइंग इन पोजीशन ऑफ इन्फ्लुएंस, बीइंग ए चेंज एजेंट, बीइंग ए पीपल डेवलपमेंट पर्सन, अगर खुद एथिकल नहीं हूं, ईमानदार नहीं हूं, इंटीग्रिटी नहीं है, मेरे खुद के अंदर ही कुछ अलग तरह के इश्यूज हैं, तो आई कैनॉट बिकम अ सक्सेसफुल ह्यूमन रिसोर्स पर्सन, है ना. मैं लोगों को बोलता हूं कि तुमको टाइम पे आना चाहिए और मैं ही लेट हूं. सो पीपल वॉच योर एक्शन. आप जिस पोजीशन में हैं, आप जिस डिपार्टमेंट में हैं, आपकी हर चीज को स्क्रूटनी होता है, खास करके एचआर में. सो बीइंग एथिकल एंड इंटीग्रिटी. सो इंटीग्रिटी इज आई डू सेम व्हेन आई एम बीइंग वॉच्ड और आई एम नॉट बीइंग वॉच्ड. या मैं जो बोलता हूँ वो मैं करता हूँ, है ना. दैट इज इंटीग्रिटी. We have to say what we preach.
Correct. So what I preach, I practice. That is integrity. And I practice the same thing even if someone is not watching it. That is integrity. है ना? And being ethical means मैं जो भी कुछ कर रहा हूँ दायरे में रह के कर रहा हूँ. तो जहाँ पॉलिसी ड्रिवन है, प्रोसेस ड्रिवन है, कोई ऐसा नहीं है जहाँ पे मैं चीजों को बाईपास करके आगे जाता हूँ. Okay, so that is the first skill or quality an HR professional should have. Second important thing is this decisive thinker. To take a decision, it is not the gut feeling always. है ना? मतलब मुझे ऐसा लगा इसलिए इसको निकाल देना चाहिए, नो. या ये बहुत बेचारा दुखी है इसको इसलिए इसको रखना चाहिए, नो. On the merit of the case, you will take a decision. है ना? एम्पैथी होना चाहिए, इमोशंस होना चाहिए, आप लोगों के बारे में, उसके हालात के बारे में आपको पता होना चाहिए. बट सिर्फ यही बेसिस नहीं होंगे टू टेक डिसीजंस, राइट? सो देन यू शुड बी ए डिसिसिव थिंकर. सोचने समझने से के लिए फैक्ट, डेटा, इंफॉर्मेशन, all these inputs as an HR professional you should have. So you should be decisive thinker, gathering and analyzing information to make the right decision. This is second important skill or competency that an HR person should have. Third is skill influencer. If I say this is another skill set. It is not always your policies, but how you can influence people. That is a skill for HR, because as I said that you are being watched, you are being followed, है ना? आपको हमेशा लोग देख रहे हैं, आपको हमेशा फॉलो कर रहे हैं, आपकी बातों पे ध्यान रख रहे हैं. आपका काम है पॉलिसी को एडमिनिस्ट्रेशन कराना. तो हर जगह पे लाठी से काम लेना पड़े ऐसा जरूरत नहीं है. कई जगह ऐसी होंगी जहां पे आप लोगों को इन्फ्लुएंस कर सकते हैं. तो ये एक ऐसा एरिया है जहां एज एन HR प्रोफेशन यू शुड गेट. किसी वजह से आपकी कंपनी में काम करने वाले लोग अचानक से काम करना बंद कर देते हैं. सपोज किसी साहब ने, किसी ऑफिसर ने किसी वर्कर को जोर से डांट दिया, और उस एक वर्कर को डांट दिया, अभी वो ठीक था गलत था कुछ, सिटिंग इन योर ऑफिस यू डोंट नो, ओके, एंड देन अदर 100 वर्कर स्टॉप वर्किंग के भाई वो सब उन्होंने, बाकी 100 वर्कर ने काम करना बंद कर दिया. हाउ डेयर, डांटा कैसे इनको या इसको, जो भी है. तो इसका एक तरीका है, कड़क होकर भी आप काम कर सकते हैं. जितने 100 लोगों ने काम बंद कर दिया, सबको नोटिस दो, सबको घर भेज दो. बट एक तरीका ये भी है कि आप जाके बाकी 99 को बोलो कि बॉस काम तो शुरू करो, अपन इसको इन्वेस्टिगेट करते हैं. और वो 99 लोग जो उस एक के लिए खड़े हो गए थे, आपके बात सुन के काम पे वापस चले जाए. दैट इज इन्फ्लुएंस, है ना? क्योंकि HR का काम खाली लोगों को रखना तो है नहीं, बिजनेस इंपैक्ट नहीं होना चाहिए ना. And then you go into the merit and nitty-gritty of the incident, and then you come out with whatever was the finding and decide कि क्या कर सकते हैं, क्या करना चाहिए, किसके खिलाफ एक्शन लेना चाहिए, and then communicate this entire thing to all the concerns. कि बाकी जो 99 थे उनको भी बोलो कि बॉस ये एक आदमी गलत था, this is the merit, okay, and this is the punishment that he should get, or this is the reward which he should get. So skill influencer. Problem solver, this is another skill. As I said, रोज कुछ ना कुछ नया है. आपका प्लांट, आपकी फैक्ट्री, आप जहाँ रहते हैं, आपका जो भी मेजर एरिया है स्टे का, उससे दूर है. आजकल ऐसा होने लगा ना कि भी जो भी इंडस्ट्रीज सेक्टर्स हैं या इंडस्ट्रियल एरिया है वो सिटी में तो होते नहीं. सिटी से 25, 30, 40, 50 किलोमीटर दूर होंगे वो.
out of the city. ओके, तो जितना भी नया डेवलपमेंट है वो इसी तरह से होना है, क्योंकि शहरों में जगह नहीं है तो आपको बाहर जाना पड़ रहा है, या ऐसे एरियाज डिफाइन करने पड़ रहे हैं जहाँ पे हम खाली इंडस्ट्रीज ही रखेंगे, एंड देन इंडस्ट्रियल टाइप डिफाइन हो गया, सेक्टर डिफाइन हो गया, यहाँ खाली केमिकल होगा, यहाँ खाली मैन्युफैक्चरिंग होगा, यहाँ खाली प्रोसेस इंडस्ट्रीज होती हैं, खाली टेक्सटाइल हो सकता है, तो ऐसे एरियाज डिफाइन कर दिए। नाउ एज्यूम कि सुबह सुबह का शिफ्ट है आपका 10 बजे का या 9 बजे का, और 50 किलोमीटर दूर से आपको मैन पावर लेके आना है, आपकी कंपनी ने ट्रांसपोर्ट अरेंज किया है, देयर आर बसेस गोइंग ऑन, रास्ते में ट्रैफिक जैम, यहाँ से शिफ्ट निकला वो पहुंच नहीं पाया, वहां से जो शिफ्ट निकला है वो यहाँ लेके नहीं आ पाया, क्या करेंगे? तो ये सब चीजें किसी किताब में लिखी नहीं, ना कोई एमबीए पढ़ा रहा है कि रास्ते में ट्रैफिक जैम है तो मुझे क्या करना चाहिए। दैट इज इन इंडिविजुअल्स एबिलिटी ना, द कॉमन सेंस बोलो, सिविक सेंस बोलो, थिंकिंग ऑन द फूड बोलो, इमीडिएटली सोचना है, डिसीजन लेना है, वहां सही है गलत है पता नहीं, लेने के बाद पता चलेगा। Sometimes it is approval driven, sometimes it is not approval driven, sometimes you have to take a decision and then go for an approval, or convincing the management that, well, this is the reason I did it. So that is an ability, which an inherent ability for an HR professional to be successful when we talk about generalist profile या plant HR या HRBP. And of course curious इसलिए क्योंकि क्या हो रहा है, क्या चल रहा है, ये भी as an HR professional you must know in which direction my business is going, in which direction the entire industry is going, in which direction there are political changes, कहाँ लेके जाएंगे, क्या करेंगे, at the same time HR में और क्या क्या नए डेवलपमेंट्स हैं। So आज मैंने पढ़ लिया, MBA हो गया, इसका मतलब ये नहीं कि मेरा आगे का पूरा 30 साल का करियर इस एक MBA से चल जाएगा, बिकॉज जैसे वो 282 बेबीलोनियन के एडिक्ट्स थे, उससे लेके आज हम काफी वी हैव प्रोग्रेस अ लॉट। तो आज जो पढ़ा है, आज जो सीख रहे हैं, खाली उतना ही काम देगा हमको अगले 30 साल तक? नो, राइट। सो बीइंग क्यूरियस विल हेल्प यू टू रिमेन अपडेटेड। You will undergo trainings, you will learn, you will undergo various forums, you will be a part of discussion groups, and you can do all these things if you are curious. नया कुछ जानने की अगर उत्कंठा होगी, इच्छा होगी, तो ही you will remain updated, and that's how you can grow in the hierarchy as well. So these are some of the skills which initially, to begin with, you should know that अब इसमें से क्या मेरे पास है, क्या नहीं है, इसका खुद का एक असेसमेंट हो सकता है। यू ऑल कैन रिव्यू योरसेल्फ कि भाई इसमें से मेरे अंदर ऐसी कौन कौन सी चीजें हैं जो हैं। आई कैन इन्फ्लुएंस पीपल, ग्रुप में मेरी चलती है, लोग मेरी सुनते हैं, मैं बोलता हूं तो काम हो जाता है ना। सो इफ दीज आर द एक्शंस, that means you can influence people. अब मेरी चलती है क्योंकि मेरे पास बहुत पैसा है, मैं रोज पार्टी देता हूँ कॉलेज में, इसलिए मेरी चलती है, इसलिए मेरे लोग सुनते हैं, then it is not an influence, है ना। So when you have the modesty, still people respond to you, then it is an influence. Otherwise it is position, है ना, power of position. So that authority sometimes required, but generally it is to be influential. Even the leadership should be influential. लोग आपके प्रभाव में आ जाए। झूठ नहीं बोलता है, झूठ नहीं बोलती, इधर उधर के घपले नहीं है। That means I am by and large ethical. I value culture, I value system, I value processes. कुछ होता है तो I help, I suggest, my ideas work. That means I am problem solver. I don't take decisions just like that. So I weigh the situations, मैं इधर आगा पीछा देख के सोच समझ के then I decide, then I am decisive thinker, right? तो ये traits अगर हैं, थोड़े ज्यादा कम हो सकते हैं, ऊपर नीचे, but अगर ये trait है तो then it is good to go in HR. So with these challenges, with these traits, you can decide whether to get into human resource or not, है ना।
Sir, there is a doubt. Shall I ask in last or now itself? No, you can ask now also. Last तक भूल गए तो. सर जैसे ये ट्रेड्स अगर हैं भी तो भी क्या होता है ऐसी टोल्ड कि हम इन्फ्लुएंसर की तरह काम करते हैं, बट कई बार ऐसा होता है कि हम हर वक्त नहीं लोगों से मतलब वी आर इन्फ्लुएंसर बट कई बार हम गलती कर देते हैं तो लोग एकदम से उस चीज को गलत ले लेते हैं. तो मेरा मतलब ये है कि इज इट गुड फॉर सारे ट्रेड्स हों भी बट इन्फ्लुएंसर बने रहना थोड़ा डिफिकल्ट है, तो क्या एचआर सही रहेगा मेरे लिए अगर मैं जाना चाहूँ तो? अगर 80-90% या सिंपल टर्म में अगर परसेंटेज देखना है, बाय एंड लार्ज ज्यादातर अगर मैं लोगों को प्रभावित कर सकता हूँ या कर सकती हूँ तो ये एक अच्छा विषय है. आप किसी भी लीडर को देख लो, किसी भी लीडर को देख लो, whether it is a political or apolitical, आप किसी भी लीडर को देख लो, everybody is not a follower of him, but majority of the people follow, है ना. वो कोई भी हो, आपका रीजनल लेवल पे हो, नेशनल लेवल पे हो, पॉलिटिकल हो, एपॉलिटिकल हो, स्पिरिचुअल हो, कोई भी हो, है ना. तो सबके लिए कोई ना कोई तो ऐसा है जो या तो भक्त की कैटेगरी में है या चमचों की कैटेगरी में है, राइट. बट देन समवन इज देयर हु इज इन्फ्लुएंसिंग द मेजॉरिटी ऑफ द पॉपुलेशन. So if I have that trait, that majority of the time, it is working, then it is a trait for me. कभी इक्का दुक्का हो गया तो then that is not a trait. That is just a fluke, by chance ऐसा हो गया. कभी अच्छा खेल गए तो ठीक है, but if it is a consistent performance, then yes, then one must go for it. कभी कभी ऐसा होगा लोग नहीं सुनेंगे आपकी, क्यों सुनेंगे? एज ए एचआर मैनेजर आप जाके बोल दो लोगों को कि सर इंक्रीमेंट नहीं मिलेगा, then you can't influence people. Right sir, right sir. है ना. तो वहां तो फिर then you have to be strict. हाँ जी हार्दिक सर, एक्चुअली मेरा थोड़ा सा एक्सपीरियंस जो रहा है, अगर आप जो भी मैन पावर है, जो भी स्टाफ हम बोल सकते हैं, कोई भी कुछ बोलता है आप साइलेंटली उसको सुनिए. ऐसा नहीं कि वो एक वर्कर है तो मैं नहीं सुनूंगा, वो मैनेजर ही सुनेगा या उसका सुपरवाइजर सुनेगा. अगर आपने इतना ही उसको दिया कि मैं सुन रहा हूँ आपकी बात, मतलब उसको ऐसा लगता है कि मैं कहीं बोलूंगा तो मेरी बात सुनी जाएगी, तो उसको एक अलग आपकी तरफ से ना एक अट्रैक्ट वो हो जाता है, बॉन्डिंग हो जाती है. एब्सोल्युटली. और आप फिर उसको कोशिश कीजिए कि आप उसकी प्रॉब्लम को समझिए, और आपको नहीं करना होता कुछ भी, करना उस सुपरवाइजर को ही है, करना उस मैनेजर को ही है जो उस डिपार्टमेंट का है. बट आपको उसकी बात को साइलेंटली सुनना पड़ेगा और फिर उस पर एक्शन लेना पड़ेगा विद प्रोसीजर. लेकिन अगर ये आप कंटिन्यू रखते हैं अपने स्टाफ के साथ या अपने वर्कर्स के साथ, तो डेफिनेटली आपके साथ एक बॉन्डिंग आएगी और वो आप पे फेथ करेंगे, आपकी बात को सुनना शुरू करेंगे. करेक्ट. तो हम जब ये इन्फ्लुएंसर की बात कर रहे हैं ना, ये कब होगा? व्हेन दिस विल बी डेवलप्ड. देयर इज अ वर्ड कॉल्ड क्रेडिबिलिटी. देयर इज अ वर्ड कॉल्ड क्रेडिबिलिटी. कोई आपके पास आएगा, आपको उसका ग्रीवियंस, प्रॉब्लम, इश्यूज ये बताएगा, आप उसको सुन के रिस्पॉन्ड करोगे विद इन अ टाइम फ्रेम. सही गलत मतलब वो उसके फेवर में हो सकता है, उसके अगेंस्ट में हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, बट यू अंडरस्टूड एंड यू रिस्पॉन्डेड. दैट मेक्स यू क्रेडिबल. वंस यू आर क्रेडिबल, मतलब लोग ये आप पे भरोसा करना शुरू करेंगे, then you become an influencer. Okay, so I मतलब इसके लिए आपको पूरा टाइम लोगों के बीच में रहने की जरूरत नहीं है. It's just you solve the grievance और आप मतलब अवेलेबल रहो, उतना ही इनफ है. Okay sir. आप सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर थोड़ी है. नहीं, मुझे you have to be between the people. हमें मेरे को ऐसा लगा था. ठीक है, थैंक यू. हम रील बना के लोगों को इन्फ्लुएंस करें ऐसा नहीं है. YouTube पे या Instagram पे रील बनेगा तो ही मेरे फॉलोअर बढ़ेंगे, but then those followers will not help in growing in a professional career. Right sir, right sir. Thank you sir. Can share the like, but they may not like.
Right. So that is, it will come from credibility. Thanks, Praveen, for bringing this. है ना? तो listening is another area which is very crucial as far as HR profession is concerned. आप हर समस्या का समाधान नहीं कर सकते या तुरंत नहीं कर सकते, लेकिन खैर सुन तो सकते हो, है ना? आजकल के बच्चों जैसा नहीं हो तो सुनते भी नहीं है. But then in a profession, yes, this is one area where you must listen. Thanks, Praveen. Okay, objective of human resource management, majority of the things we discussed, to seek effective cooperation from the employees toward the accomplishment of organizational objectives. भाई मिलजुल के काम करो, क्योंकि because eventually हमको organizational goal को achieve करना है, right? So that is what HRM as a function is responsible or accountable for, to create, maintain and utilize a competent and motivated workforce. थोड़ा सा मुश्किल काम है, आप किसी को बता सकते हो, सिखा सकते हो, समझा सकते हो, लेकिन मोटिवेशन एक ऐसा एरिया है जो सेल्फ है, मतलब मुझे अंदर से आएगा, है ना? किसी को मोटिवेट करना इतना आसान नहीं है. हम ज्ञान की बात कर सकते हैं, लेकिन वो ज्ञान कमरे तक है, जैसे दरवाजे के बाहर निकलते हैं हम झाड़ के निकल जाते हैं. ये तो रोज का है यार, इतना तो हम तो सुनते ही नहीं, तो हमको पता ही है ना. Okay, so it is difficult, but yes, you must try and bring in those initiatives जिससे चीजों को स्पार्क मिलता रहे, है ना? तो ऐसा नहीं है कि किसी को आप मेडिटेशन करना सिखा दोगे तो वो मोटिवेटेड हो जाएगा या उसका ध्यान केंद्रित हो जाएगा, लेकिन ऐसा प्लेटफॉर्म अगर हम दे सकते हैं तो जो 10 होंगे उसमें से किसी एक दो का तो भला हो ही जाएगा, है ना? And that will eventually help the organization in totality. Objective is to have it 100%. Integration of individual and organizational goals. कंपनी क्या चाहती है, इंडिविजुअल क्या चाहता है, और दोनों को उसका जो सिंक्रोनाइजेशन है, that is also an objective of human resource management. HR का काम है. Train and develop employees. लोगों को सिखाना, प्रोसेस हो, सिस्टम्स हो, एप्लीकेशंस हो, स्किल डेवलप करना हो. आज से 30 साल पहले अगर किसी ने इंजीनियरिंग पढ़ा है, तब की और आज की बिजनेस प्रोसेस में बहुत फर्क है. तो आपको कहीं ना कहीं उनको सिखाना पड़ेगा, कहीं ना कहीं अपडेट करना पड़ेगा. क्यों? क्योंकि आप जो नए लोगों को हायर करेंगे वो नई टेक्नोलॉजी सुन के आ रहे हैं. आप अगर अभी भी उन्हीं देखेंगे उसी चीजों को इंप्लीमेंट करने की कोशिश करेंगे तो लोग नहीं सुनेंगे ना. देयर विल बी अ डिफरेंस ऑफ ओपिनियन, डिफरेंस ऑफ थॉट प्रोसेसेस. इसमें गलत दोनों में से कोई नहीं है. सो देन यू हैव टू ट्रेन पीपल, यू हैव टू ट्रेन योर सीनियर मैनेजमेंट ऑन न्यू टेक्नोलॉजीज, you have to train your lateral hirings or new entrants on the business etiquettes, and then it can be an amalgamation. To reduce employee grievance, you cannot as such reduce the grievances, but you can definitely provide the platform. So it is HR who has to provide the platform to address these grievances. कैसे इसको हैंडल कर सकते हैं या कैसे करना चाहिए, क्या करना चाहिए, किस तरह की ग्रीवियंसेस आएंगे तो किस लेवल तक एड्रेस होना चाहिए. Attract and retain the talent, as I said. आप अच्छे लोगों को हायर करें और उसके साथ में वो आपके साथ बने रहे, उसके लिए क्या स्ट्रेटजीज हो सकती है, दैट इज आल्सो एन एचआर's ऑब्जेक्टिव. मोरल, सोशल एंड एथिकल स्टैंडर्ड ऑफ एम्प्लॉइज. तो चोर, दारू पीने वाला, someone with a bad conduct. When I say दारू पीने वाला, मतलब he is an habitual drunkard, something which is not acceptable within the workplace. तो इस तरह की चीजों को हमको प्रमोट नहीं करना है एज एन एचआर. सो इट इज एन ऑब्जेक्टिव ऑफ एचआरएम टू इंश्योर दैट ये सब चीजें नहीं हो रही हैं ऑर्गेनाइजेशन में. देयर आर पीपल हु आर ऑनेस्ट, हु आर एथिकल, हु वैल्यू ऑर्गेनाइजेशनल वैल्यूज. ओके, एंड लोगों के बीच में एक तरह का हार्मोनी है. ये हार्मोनी डेवलप हो, बना रहे, इसके लिए बहुत सारे इनिशिएटिव्स कंपनीज या ऑर्गेनाइजेशंस लेते हैं. हाइब्रिड मॉडल आ गया, वर्क फ्रॉम होम आ गया, है ना, क्रॉस फंक्शन एक्टिविटीज हो गई. सो देयर आर लॉट ऑफ थिंग्स which under the gamut or umbrella of HR comes in, and these all are the objectives of an effective human resource management. Sir, I have a question here. Yeah. If someone has a good communication skills and a company approaches like we need some such candidates and you are the one, so what should we do for the HR post? Like we do not have the degree for that, we have not learned anything about HR. What should we do for that?
You should join YSI. What's that? You should join YSI, Young Skill India's HR operation. No, as I said, that in HR there are various verticals. Without any prerequisite, without any pre-qualification, if you are being approached or hired for an HR job, the perception of HR is different. The one who is hiring. Communication is important, but it is not the only thing. And then, speaking very good English does not mean that I am a very good HR professional. Yes, sir. मेरे को अंग्रेजी अच्छा आता है, इसका मतलब है कि मुझे HR अच्छा आता है. Yeah, so that's the reason I wanted to ask, what's the difference between these two HR things? Right. So when you speak well, you have a lot of areas. You go and preach. You become a spiritual leader. You become a sadhu. You become a spokesman. But wherever you go, you will have to have the basic information of that area. So just because of your own communication skill, if you are being asked to come and be a part of the HR, please remember, there will be the days to come when your communication will not only help you to survive, but you must know how to hire people. You must know how to retain people. You must know how to communicate with people. Communicate is not only the language, English. And as I said, influence, grievance handling. So once you go through, now if you when you'll continue with this particular segment of human resource learning, you'll be touched upon all the aspects of HR. Okay, then there are specializations. So there is an MBBS, there is an MD. Yes, sir. There is an MS. Okay, but then MD also, there is an MD medicine, then there is an MD diagnosis. So there are different specializations. आँख नाक कान वाला अलग है, दिमाग वाला अलग है, हाथ पैर वाला अलग है, हड्डी वाला अलग है. है ना? Yes, sir. As an MBBS, if a big hospital hires you and then वो बोले कि जाओ उसको जरा खोल देना, उधर लेटा है ICU में, उसको खोल दो. Then you must learn कि उसको खोलने के लिए मुझे क्या होना चाहिए पता है ना? Yes, sir. Communication is a very good trait, but communication in totality is a good trait. Just if I can speak a good English does not mean I have a very good communication skills. है ना? You asked me a question, I answered. If that answer is correct, you understood, it is communication. You asked me a question and I spoke, all Shashi Tharoor English. लेकिन समझ में नहीं आया क्या बोला. तो सुनने में तो अच्छा लगा लेकिन समझ में नहीं आया. Then it's not a communication. So then getting into that particular workplace in that area, you will have to understand that what the role demands. And accordingly, you will acquire that knowledge, whether by studying further, going for a specialization, going for an MBA, whatever may be the mode of learning, but then you have to acquire that knowledge. And once you have that knowledge, then उसके ऊपर धीमे-धीमे capitalize करके then उसको skill में convert करेंगे, then you become an expert. Did I answer your question, Nabha? Somehow, sir. Somehow I understand. So बाकी का जो somehow है वो कहाँ confuse कर रहा है? It's just that, sir, there are lots of companies like MNC companies, and they are like, yes, we can offer you. We are a software company, but I'm like, I do not know anything about software. It's just that I can communicate with people. I can convince people. I am into it since when I was 17. So they are like, we will help you with the trainings and everything. You just have to work with us. Correct. So the example that you gave, right. So the example that you gave, when you can speak well, so in IT company, the major role is IT recruiter. If you see HR perspective, the major role is IT recruiter. That means maximum attrition उस field में है.
मतलब लोगों का आना जाना सबसे ज्यादा आईटी सेक्टर में है ना, बिकॉज डिमांड एंड सप्लाई इज टू टफ। तो अगर आपके पास एक स्किल अच्छा है एज ए सॉफ्टवेयर डेवलपर, इमीडिएटली देयर आर कंपनीज हु आर रेडी टू हायर यू, और थोड़ा सा भी ज्यादा पैसा मिलेगा, पीपल विल शिफ्ट। यस सर, So दैट्स with द your थिंग। good communication skill, you must know what your organization is offering to the candidate, है ना। एंड देन वो आपको क्या सिखाएंगे, वो आपको ये सिखाएंगे कि naukri.com से आप प्रोफाइल कैसे सर्च करोगे। ओके, ठीक है, मतलब कोई भी टूल यूज करके आप कैंडिडेट कैसे ढूंढोगे वो आपको सिखाएंगे। वो आपको ये बताएंगे कि मेरा इंडस्ट्री में ये काम होता है, बट बिकॉज यू कैन स्पीक वेल, है ना, इट इज एक्सपेक्टेड फ्रॉम यू that you will be able to sell your brand to any talent you are looking at. यस सर, है ना। तो उसमें एचआर का रोल एज ए रिक्रूटर एंड योर स्किल एज ए कम्युनिकेशन। तो अच्छा अंग्रेजी आता है, यू कैन स्पीक विद यूएस क्लाइंट्स, यू कैन अंडरस्टैंड their requirement because you are able to communicate, you are able to connect well because of the language proficiency. यस सर। लेकिन कैसे हायर करना है, हायर करने के बाद क्या होगा, उसका ऑनबोर्डिंग कैसे होगा, वो आपको सीखना पड़ेगा। So that becomes core HR. This is your trait, and when both comes together, you're speaking with people and conversion ratio is very high, you become a successful recruiter. You continue these things over a period of time, you become talent acquisition head. Okay, there's a website as well, so talent acquisition. Correct. So talent acquisition का मतलब ये है कि हमको लोगों को ढूंढना है और उनको हायर करना है। Okay, okay. है ना। तो रिक्रूटमेंट एंड सिलेक्शन जो एक सब्जेक्ट है, उसको आजकल के अंग्रेजी में बोलते हैं टैलेंट एक्विजिशन। Okay, sir. Okay, now I understand. Right. So scope. Actually, हार्दिक सर, कई बार ऐसा फेस करते हैं हम लोग, एचआर की तरफ से कॉल तो आया हायर के लिए, बट वो एक बहुत बेसिक नॉलेज उसको, वो अपने एचआर की प्रोसेस जो है रिक्रूटमेंट का उसको पता है, बट वो टेक्निकल पर्सन को हायर कर रहा है। करेक्ट। अब हम उसको अगर उधर से सामने से कोई क्वेश्चन आता है तो एचआर इज फेल ऑन दैट टाइम, क्योंकि उसको रिक्रूटमेंट का प्रोसेस पता है, उसको नहीं पता कि उस पर्टिकुलर डिपार्टमेंट में या कंपनी के जो क्वेश्चन है उसके बारे में नहीं पता उसको। तो मेरा कहना, इसमें मेरा कहना सिर्फ ये रहेगा कि हेल्थी कम्युनिकेशन क्या होता है, सिर्फ इंग्लिश बोलना ही नॉट अ हेल्थी कम्युनिकेशन। करेक्ट। आप उसको कैसे गाइड कर सकते हैं, कंपनी की पॉलिसीज के बारे में कैसे बता सकते हैं, उसको कैसे अट्रैक्टिव कर सकते हैं कि मेरी कंपनी में ज्वाइन करो, अगर वो अच्छा पर्सन है। तो मुझे लगता है हेल्थी कम्युनिकेशन वो रहेगा कि आप कितना ज्यादा कंपनी के बारे में जानते हैं, आप कितना ज्यादा कंपनी के लिए बता सकते हैं उसको, और कंपनी की पॉलिसीज क्या रहती है उन सब के लिए पता होना चाहिए एचआरएम को, जिससे कि एक और वो अंडरस्टैंड कर सके कि वो पर्सन उस एरिया का मास्टर है या कुछ मतलब नॉलेज रखता है। तो वो उसके जानने के लिए हमको भी थोड़ा सा नॉलेज रखना पड़ेगा। करेक्ट करेक्ट करेक्ट। तो दैट इज व्हाट आई सेड। जैसे उन्होंने शी स्पोक अबाउट आईटी, तो आईटी में मेजर एचआर का रोल अभी के टाइप में एचआर रिक्रूटर। और वट एवर यू सेड प्रवीण, ये सब कैसा है, दिस इज ऑल टैसिट नॉलेज विच कम्स बाय वर्च्यू ऑफ एक्सपीरियंस। आप जब रिक्रूट करेंगे तो हमको लगता है क्या यार, उधर से सीवी देख लेते हैं, उसको फोन कर देंगे, बोल देंगे मेरे यहाँ जॉब है और तुम्हें अप्लाई कर दो। ठीक है। तो उसका पहला सवाल ये होगा कि भाई जॉब डिस्क्रिप्शन क्या है। नाउ इफ यू आर नॉट फ्रॉम द कोर एचआर, इफ यू हैव नॉट स्टडीड, तो पहले तो ये टर्म कंफ्यूज करेगा जॉब डिस्क्रिप्शन मतलब क्या है। जी। ओके, देन यू गो एंड हंट या सर्च, मैनेजर को पूछोगे सर वो जॉब डिस्क्रिप्शन पूछ रहा है, तो मैनेजर बोलेगा हाँ जेडी है ना उधर, वो फोल्डर में रखा है, देख लो। Now by reading you may understand, you may not understand. Over a period of time, हमने अभी in the previous slides एक trait discuss किया ना, curiosity as a skill of HR, being curious. Yes, yes. है ना। तो ये क्या होगा, ये आपको अपने आप से करना पड़ेगा। तो अगर अपने अंदर में ये क्यूरियोसिटी है, तो बीइंग एन एचआर प्रोफेशनल, एचआर मैनेजर ऑल्सो में
क्वालिटी वाले का भी आधा स्क्रीनिंग तो कर ही डालूंगा। अगर मुझे बिजनेस प्रोसेस पता है, अगर मुझे मेरा एरिया ऑफ ऑपरेशन पता है, अगर मुझे उस बंदे का जिसको मैं हायर कर रहा हूँ उसका रोल इंडस्ट्री में क्या है, अगर इतना पता है, तो 40-50% स्क्रीनिंग तो मैं खुद ही बैठे बैठे प्रोफाइल देख के कर लूंगा, उससे बात करते करते कि इसको आगे बुलाना चाहिए कि नहीं बुलाना चाहिए। That will come by virtue of experience, as I said that ना, when you have the skill, gradually जैसे जैसे आप काम करते रहेंगे इंडस्ट्री में, आपको पता लगने लगेगा कि मुझे किस तरह के लोग होंगे तो मैं हायर कर सकता हूँ, किस तरह का लोग होगा तो जल्दी आ जाएगा, है ना। HR में there is a theory called Maslow's need hierarchy theory, that will come आगे। There are different levels, किस लेवल पे अगर मुझे आदमी हायर करना है या रिटेन करना है तो उसको किस तरह का गाजर दिखाना पड़ेगा, है ना। गीता में बोला कर्म करो फल की इच्छा मत रखो। Many experts are select the 50% also by HR. Correct, that's what I'm saying. तो गीता में तो कहा है कर्म करो फल की इच्छा मत रखो, लेकिन यहाँ पे ऐसा है कि हमको पता होना चाहिए क्या क्या फल हम उसको दिखा सकते हैं। उसकी इच्छा हो या ना हो, ये फल हम उसको दिखा सकते हैं। तो अगर एंट्री लेवल का है तो अपने को पता है कि उसका बेसिक कंसर्न पैसा हो सकता है, मिड मैनेजमेंट में है तो उसका बेसिक कंसर्न जॉब सिक्योरिटी हो सकता है, या अदर फैसिलिटीज अदर देन मनी हो सकता है। So these all things you will learn when you will be working in any of these areas, and gradually you will understand, है ना। So there your communication skill, your knowledge about your own organizations, job description, everything will come in picture, and then how better you can articulate. आप जहाँ काम कर रहे हैं बहेड़ी, आप उसको बहेड़ी को इतना अच्छी तरह से बताओ, लोगों को लगेगा अरे फॉरेन का कोई लोकेशन है ना, ऑन साइट काम मिल रहा है मुझे। People will be very happy to join and come there. Okay, so that is what your communication skill will help you. But you must know what that particular location is, what that particular project is, what that particular work is. इतना as a HR professional आपको पता होना चाहिए, and that you will have to learn. है ना, we all will teach you the various theories, various concepts, but then उसका implementation तो field में अपने को ही करना है. So the scope, as I said, staffing, लोगों को hire करना, collective bargaining. Collective bargaining is a concept when there are worker association या groups, तो उनका salary increment, wage revisions वगैरह कैसे करना, that is collective bargaining. Self development of employees, लोग अपना खुद का development करें, organizational development हो, लोगों को motivate करना by offering incentives or without incentives also. हम क्या उनको दे सकते हैं जिससे उनको अच्छा लगे, आगे बढ़े. रिव्यूइंग और ऑडिटिंग द वर्कफोर्स, जितने लोग हैं वो सफिशिएंट है कि नहीं, कम करना है, ज्यादा करना है. इंडस्ट्रियल रिलेशन इज अ वेरी मेजर एरिया इन एचआर नाउअडेज. ओके, और ये धीमे धीमे ड्राई होता जा रहा है. मतलब इसमें आपको अच्छे आईआर एक्सपर्ट्स जल्दी नहीं मिलेंगे क्योंकि ये थोड़ा सा मचमच वाला एरिया है. बिकॉज अल्टीमेटली यू आर डीलिंग विद पीपल हु आर नॉट वेरी हैप्पी विद इन द ऑर्गेनाइजेशन, है ना. सो यूनियन है या ट्रेड यूनियन है, लेबर्स है, तो उनके जो भी एरियाज हैं, दैट ऑल कम्स इन इंडस्ट्रियल रिलेशनशिप. हड़ताल, एक्सीडेंट्स, मारामारी, डिसिप्लिनरी एक्शंस, ऑल आर इन इंडस्ट्रियल रिलेशन. तो यहाँ मेजॉरिटी कायदे कानून के ऊपर बात होती है, जनरली हार्श डिसीजन लिए जाते हैं. वेरी डिफिकल्ट वर्किंग विद यूनियंस. यस, तो ये जो एरिया ऐसा है, ये एरिया धीमे धीमे कैसा होता जा रहा है कि इसमें आपको एक्सपर्ट्स जनरली लोग जाना नहीं चाहते, क्योंकि हम सब एज ए प्रोफेशनल सबको अच्छा लगता है कि एसी केबिन में बैठ के काम करें, है ना. एक लैपटॉप होना चाहिए पहले दिन से हमारे पास, और हम खाली प्रेजेंटेशन बनाएंगे, काम करने के लिए दूसरे आदमी रखेंगे. Whereas IR is an area which is not such, you know, it's a field job. Largely you will be taking decisions which are not favorable, sometimes not favorable for the organization, sometimes or most of them not favorable to the employees as well, है ना. तो जनरली इसमें लोग कम मिलेंगे अपने को आईआर में. सो दिस इज एन अपॉर्चुनिटी फॉर अ करियर. थोड़ा सा रूथलेस स्ट्रॉन्ग बनना पड़ेगा, बट देन यस, इट इज अ वेरी लेस कॉम्पिटिटिव एरिया, राइट. एंड इम्प्रूविंग वर्कफोर्स मैनेजमेंट थ्रू अंडरस्टैंडिंग ऑफ ह्यूमन बिहेवियर. तो साइकोलॉजी है, लोगों का बिहेवियर है, उनकी नीड है, एम्पैथी है, बहुत सारे एरियाज है जिसके थ्रू हम
अगर चाहें तो चीजों को इम्प्रूव कर सकते हैं या इम्प्रूवमेंट ला सकते हैं. This is, as I said, two major bifurcations. One is HRD, the development and managerial function, and second is operations. Operations is routine nitty-gritty. Development is interventions जो लंबे समय तक चलेंगे, जहाँ major involvement होगा, concept driven change, cultural shifting, addressing value system, bringing new concepts, they all comes in the left hand zone. और रूटीन जो भी है, लोगों को हायर करना, उनका सैलरी प्रोसेस करना, बाकी जो एडमिनिस्ट्रेटिव एरियाज हैं, दे आर ऑल ऑपरेटिव एचआर. सो प्लानिंग, ऑर्गेनाइजेशन, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग, कंट्रोलिंग आर मैनेजरियल एरियाज. एंड procurement means hiring people, developing them, compensation, that is salary management, development of individual, motivation, maintenance, industrialization, all these becomes the operative functions of HR. Each of this area, one can become an expert, a specialist. आँख का डॉक्टर अलग, नाक का अलग, कान का अलग, गले का अलग. उसी तरह से in HR also, in all these verticals, you can independently have a career. And you can be a person who is jack of all, उसको ये सारी चीजें पता है और आप हर जगह पे काम कर सकते हैं. So as you grow in hierarchy, you have both the choices. Operative functions, if you see the details, when you say procurement, that is hiring people, job analysis and design, human resource planning, कितने लोग चाहिए, कब चाहिए, कहाँ चाहिए, कैसा चाहिए, कहाँ से मिलेगा, all this becomes the first vertical. Then their recruitment, selection, then bringing them on board, their induction, and then keeping them on the job. Orientation is making them aware about the organization. So Nabha, what you were saying, that they are impressed by the communication, so therefore they would hire you. But then once you are hired, then what is important is being oriented about that particular organization. So whosoever is taking care of the HR function there in that particular organization, they must orient you with the organization, the culture, the value system, the job processes. And you as an HR person must know the job designs या job analysis. क्या हायर करना है, किसके लिए करना है, इतना आपको सीखना पड़ेगा और ओरिएंटेशन उन लोगों को देना पड़ेगा, है ना? Your trade is something which they wish to encash, but at the same time, these are the input that you must know. Umran Malik 150 की स्पीड से bowling कर सकता है, that is his trade. But to be in the team, he must learn the line, length, pitch behavior, opponent. So उसके लिए उसको कोचिंग का जरूरत पड़ेगा, उसके लिए उसको ओरिएंट करना पड़ेगा. 150 का स्पीड is his own energy, his own force. But कब कैसा बॉल करना है, किसको कैसे बॉल करना है, ये उसको ओरिएंट होना पड़ेगा. For that he need to be coached. That is what he need to learn. कहाँ करेगा, कैसे करेगा, again it depends on him. He can seek help of some coaches. He can do it by YouTube videos or whatever it is. But then this is the information which he must learn. Second vertical is development, which talks about career planning and development, workers training, executive development, organizational development. These are the areas where HR as a function, as an individual plays a role. Compensation, लोगों का salary, तो job evaluation, मतलब सारे managers को एक जैसा पगार मिल रहा है क्या, different vertical, different managers, there are different credit systems. Performance management, तो अच्छा काम करेगा तो उसको ज्यादा incentive है, अच्छा काम नहीं करेगा उसको punishment है. All this comes in the compensation area. This itself is a vertical. Employee maintenance and motivations, so employee well-being, health and safety awareness, health and safety measures, job rotations, लोगों को एक job से दूसरे job में shift करना, just to remain, either making them multi-skilled workforce, काफी सारी चीजें उनको आनी चाहिए, या फिर उनका monotony है जिससे वो बोर हो जाते हैं तो change होता रहे. And then integration, लोगों के साथ, system के साथ, बाकी industries के साथ, आपके area के साथ, your own amalgamation and gelling. How HR can influence or implement? So there are all levels where HR plays a very important role. If you say individual level, we spoke all these things about individual.
है ना, खुद को या किसी एक आदमी को कैसे अच्छा कर सकता है। यस प्रवीण, एक चीज पूछना चाहूंगा, ये जॉब रोटेशन कितना सक्सेसफुल है सर? मतलब जॉब एक्चुअली रोटेशन होता क्या है कि एवरीवन वांट टू सर्च अ सेफ्टी, कह सकते हैं इसको, सेफ एरिया। और जॉब रोटेशन जब होता है तो वो सेफ एरिया, क्योंकि मैं एक्सपर्टाइज हूँ तो मुझे एक लेवल के बाद जाने के बाद में मैं थोड़ा सा सेफ जोन में पहुंच जाता हूँ। करेक्ट, मतलब चीजें मेरे अंडर होती हैं और हाउ टू मैनेज ये मुझे पता होता है। बराबर। बट रोटेशन में मैंने कई जगह देखा भी है कि लोग जॉब को छोड़ देते हैं। हाँ, मतलब सी जॉब रोटेशन एज ए प्रोसेस मस्ट बी सिस्टमेटिक। सिर्फ करने के लिए करना है तो उसमें तो दिक्कत है। और रोटेशन करने के बाद आप जब उसको असेसमेंट कर रहे हो तो आप किस पैरामीटर पे कर रहे हो वो भी इंपॉर्टेंट है। सिंस यू सेड यू ऑल फॉलो क्रिकेट, आई एम जस्ट गिविंग एन एग्जांपल। बॉर्डर गावस्कर सीरीज का पहला टेस्ट मैच, डे 1 ऑस्ट्रेलिया वाज ऑल आउट, इंडिया का बैटिंग आया, केएल राहुल एंड रोहित शर्मा दे ओपन। आई थिंक लास्ट ओवर में शायद केएल राहुल आउट हो गया, लास्ट या सेकंड लास्ट, बाय द एंड ऑफ द डे जब मैच खत्म होने वाला था, वी लॉस्ट केएल राहुल। ट्रेडिशनली विराट कोहली वुड हैव कम एट नंबर 3, है ना, बट देन नाइट वॉचमैन करके रविचंद्रन एंड अश्विन केम। नाउ दिस इज जॉब रोटेशन। अब मान लो अश्विन सेंचुरी मार दे, इसका मतलब ये नहीं कि अगले मैच में उसको 3 नंबर पे खिलाना है, या अश्विन नहीं चला इसका मतलब ये नहीं है कि ही इज नॉट ए गुड प्लेयर। At that point of time, this is what the demand was, but the assessment should not be based on that particular inning या instance. His role is fixed in the organization. His role is fixed in the team. That Ashwin is there as a bowler, as a wicket-taking bowler. If he is batting, he can be a good all-rounder. तो हम क्या कर सकते हैं, हम बैंक कर सकते हैं। अगर 50-60 रन बनाना है तो वी कैन थिंक, चलो अश्विन है तो वी कैन थिंक कि 20-25 रन अगर वो बनाएगा, स्टैंड देगा, तो दूसरा वाला 25-30 बनाएगा, वी कैन विन द मैच। सो दिस इज हाउ द जॉब रोटेशन वर्क्स। इंडस्ट्री में एक्चुअली इतना टाइम नहीं होता किसी को कि वो इतना ट्राई कर पाए। अगर वो फेलियर रहा वहां पर तो डेफिनेटली, that is what I'm saying job rotation difficult. if it is in business philosophy तो उसका असेसमेंट भी इसी तरह से होगा जैसे मैंने बताया। अब छोटी छोटी कंपनीज, आया अंजलि, you were also saying something, you asked then. So I was saying that as Praveen sir was saying कि पहले लोग सेफ्टी एंड सिक्योरिटी देखते हैं कि अगर वो एक काम में बहुत अच्छे मास्टर हो गए तो वो नहीं चाहेंगे कि उनका जॉब शिफ्ट हो और वो उन पे रिस्क आए कि वो उनकी जॉब चली जाएगी। तो आपने जो एग्जांपल दिया उसके अकॉर्डिंग हम ये बोल सकते हैं कि उनकी जो जिस चीज में वो मास्टर्स है तो वो उनकी जगह फिक्स है, उसके बाद उसको कंपनी के लिए ऑलराउंडर बनाया जा रहा है। या फिर हम यहाँ पे ये बोले कि जॉब, यस, दैट इज व्हाट आई एम सेइंग, जॉब रोटेशन एज ए फिलोसॉफी। अगर ये ऑर्गेनाइजेशनल फिलोसॉफी है, इन दैट केस इट इज थ्रू असेसमेंट ओनली, है ना। आपके अंदर पोटेंशियल है, आप उसको लीड कर सकते हैं, इसलिए आपको वहां रखा है। अगर कंपनी का ऑब्जेक्टिव ही लोगों को निकाल देना है तो देन इट इज नॉट अ जॉब रोटेशन। फिर तो दैट इज दे आर फाइंडिंग ए रीजन दैट यू डोंट परफॉर्म एंड यू आर आउट। नहीं, मैं ये ऐसा नहीं कह सकता कि ये कंपनी का ऐसा था कि वो निकालना चाहते थे। निकालना चाहेंगे तो बहुत रीजन होते हैं सर, उसके लिए जरूरत नहीं है कि रोटेशन करनी पड़े। लेकिन मेरा कहना ये था कि कितने % सक्सेस है वो रोटेशन, बिकॉज ऑफ कि कंपनी मैनेजमेंट ने सोचा है, बिकॉज ऑफ द, ठीक है ये, लेकिन उसमें एम्प्लॉय से नहीं पूछा जाता कि आप चेंज करने के लिए एग्री हैं या नहीं। ऐसा होता है क्या सर? नहीं होता है। मैं वही कर, इफ इट इज ए ऑर्गेनाइजेशनल फिलोसॉफी तो देन द प्रोसेस वुड बी लेट डाउन इन ब्लैक एंड व्हाइट। जॉब रोटेशन मतलब क्या, किसका हो सकता है, कब हो सकता है,
करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए, एम्प्लॉय का कॉन्सेंट क्या है. There are certain organizations, they will write in your appointment letter that it is a transferable job and you will have to go. आपके पास चॉइस ही नहीं है, because you have already signed a contract and it is written कि अगर कल उठ के कहीं कुछ नया आता है काम तो आपको करना पड़ेगा. Yes, yes. है ना. उस केस में as an employee you do not have choice. Yes, if the management is good, if they are asking you, they can ask you only if there are multiple options available to them. लेकिन अगर सारे मना कर देंगे तो किसी न किसी को तो भेजना ही पड़ेगा. तो वही मेरा कंसर्न था कि वो कितने परसेंट ऐसा रहता है कि एम्प्लॉय से हम कंसर्न लेते हैं. करेक्ट करेक्ट. अब सबसे पूछा 10 लोग हैं जो प्रोडक्शन मैनेजर हैं और आपका अभी हरिद्वार में प्लांट है, ठीक है, या रुद्रपुर में एक प्लांट है, नया प्लांट राजस्थान में जयपुर में वो लोग डाल रहे हैं. सेम प्रोसेस, सेम मशीनरी, सेम प्रोडक्ट, एवरीथिंग इज सेम. प्रवीण को बोला, प्रवीण जाएगा क्या? नहीं साहब, मैं तो यहाँ मजा है, घर नजदीक में है, आई डोंट वांट टू. ठीक है, तो फिर दूसरे को पूछा, शिवांग भाई आप जाओगे? नहीं. आशिता मैडम आप जाओगे? नहीं सर मैं तो कहाँ, बच्चे छोटे हैं, स्कूल जाते हैं. शिवांग बोलेगा नहीं साहब यहाँ तो, वहाँ तो कुछ मजा नहीं है, ग्रोथ नहीं है ना. 10 लोगों को पूछा, 10 में से 9 ने मना कर दिया, या 10 ने, दे हैव ऑल देयर ओन रीजंस ऑफ नॉट टू गो, बट कंपनी वांट्स वन शुड गो. तो देन देयर इज अ मैंडेट कि भाई प्रवीण जाना तो पड़ेगा, यू आर द मोस्ट सीनियर, सबसे ज्यादा पगार ले रहे हो. दिस इज अ डिफरेंट थिंग सर. दिस इज अ लोकेशन चेंज और द but within the same organization also, मान लो किसी दूसरे डिपार्टमेंट में मेंटेनेंस, unless it is very सप्लाई चेन drastic, वाले को डाल प्रोडक्शन में डाल दिया, unless it is very drastic, मैं वही कह रहा हूँ, unless it is very drastic. किसी अकाउंट्स वाले को बोला कि भाई तुम एचआर देखो, टू अ ग्रेट एक्सटेंट इट विल बी पॉसिबल, खाली उसको बेचारे को कॉम्प्लायंस शायद पता नहीं होगा, बट बाकी चीजें ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम ही विल ग्रेजुअली पिकअप. और धीमे धीमे उसका खुद का गट फीलिंग्स एंड अंडरस्टैंडिंग फ्रॉम अदर एक्सपर्ट्स, ही विल डेवलप दोज स्किल्स. अगर उसका खुद का इंटरेस्ट है तो. अगर इंटरेस्ट नहीं है तो ही विल बी ए फेलियर, एंड देन मैनेजमेंट हैव टू चॉइसेस, आइदर टू ब्रिंग हिम बैक टू द ओल्ड डिपार्टमेंट अगर वहां पोजीशन एग्जिस्ट करता है तो, नहीं तो उसको बोलेंगे बॉस यू आर, तुम देख लो. तो जॉब रोटेशन अगर उसका ऑब्जेक्टिव डेवलपमेंट है लोगों का, तब तो उसका ले डाउन प्रोसीजर होगा और उसमें बहुत कम ग्रीवियंस होंगे, बहुत कम. और 100% या 180 डिग्री शिफ्ट हो जॉब प्रोफाइल में, ऐसा नहीं होगा इन जॉब रोटेशन, है ना. तो अगर कोई आदमी ऐसा है जो परचेज में है तो उसको ऐसा बोल सकते हैं कि भाई तू मटेरियल प्लानिंग भी देखेगा. तो अ सिमिलर रोल परचेज से वो प्लानिंग में, मैनेजमेंट में आएगा. कोई एचआर ऑपरेशंस देख रहा था, उसको ये बोल सकते हैं भाई तुम एचआर ऑपरेशंस देख रहे थे, अभी तुमको डेवलपमेंट में देखना है, मतलब यू हैव टू कम इनटू रिक्रूटमेंट एंड हायरिंग. अभी वो उसका नेचर ही ऐसा है कि उसको रोज लोगों से लड़ाई झगड़ा करना है ना, उसका कोर ही ऐसा है. देन ही विल नॉट बी वेरी सक्सेसफुल रिक्रूटर. एक को फोन किया, बोले यार टाइम नहीं पता, टाइम नहीं तो बात मत कर, रख दो. आई मीन पोटेंशियल कैंडिडेट नहीं आएगा. You can't sell your brand because it is not his own area of interest. तो ऐसे केस में he will be a failure, and eventually with lot of failures, management has no other option but to rate accordingly. Right, Praveen? तो क्या प्रोसेस है, वो प्रोसेस उस पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन में कैसे इंप्लीमेंट हुआ है और उसकी क्या ऑब्जेक्टिव या पर्पस है, उसके हिसाब से दिन बाकी चीजें, उसका ग्रीवियंस या उसका बेनिफिट हो सकता है. जो छोटी इंडस्ट्रीज है, स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज है, वहां तो ये इट इज वेरी कॉमन. उसको आप वहां वो लोग जॉब रोटेशन बोलते नहीं है, वहां उसको बोल देते हैं कि भाई तू ये देखना कल से, है ना. एक ही आदमी होगा, वही प्लांट हेड होगा, वही कमर्शियल हेड होगा, वही सप्लाई चेन देख रहा होगा, वही स्टोर भी देख रहा होगा, सब कुछ का बॉस वो अकेला आदमी. इन एसएमईज और एमएसएमईज वहां कोई जॉब रोटेशन जैसा कॉन्सेप्ट ही नहीं है. परिवर्तित करो नहीं तो देख लो.
ऐसे एनवायरनमेंट में जो थोड़ा सा ऐसा है जिसको चैलेंज लेना अच्छा लगता है, तो ही विल डेवलप, ही विल लर्न ऑल दिस थिंग्स। इवेंचुअली 15 साल 20 साल बाद में ही इज ए मटेरियल और रिसोर्स हु कैन बी डिप्लॉयड इन एनी बिग ऑर्गेनाइजेशन इन एनी रोल, है ना। तो सीईओ तक का जो भी उसको सीखना चाहिए वो सारा सीख लेगा। कुछ होंगे हमारे जैसे लोग होंगे तो बोले ना छोड़ो नहीं, कहाँ आईआर फायर, मैं आई नॉट गो टू स्पीक विद वर्कर्स, आई एम हैप्पी यहाँ बैठ के ऐसा जूम पे मीटिंग करेंगे, नाइस जॉब। So then you'll remain restricted in that much area itself, है ना। या तो फिर अपने आप को इस लायक बना देना पड़ेगा कि फिर दुनिया में कहीं भी L&D वाले की जरूरत पड़ेगी तो एक ही नाम गूंजेगा, हार्दिक हार्दिक हार्दिक, and then it becomes a head hunting kind of thing. So again, choice is with individuals to take up or not to take up, and if it is given, how to take that. नाइट वॉचमैन बना के भेजा है तो उसका रोल उस टाइम पे इतना ही है कि उसको वो शाम निकाल देनी है, दैट इज हिज रोल फॉर दैट पर्टिकुलर मोमेंट। नाउ इफ ही डिड वेल, every time the situation will arise and Ashwin is in the team, he will be the night watchman, वो 3 नंबर पे आएगा ही। अच्छा बैटिंग कर दिया तो हो सकता है पहले बैटिंग में ऑर्डर में 10वें नंबर पे था, 25 30 50 मार दिया तो अगले मैच में उसको बैटिंग ऑर्डर में एक लेवल ऊपर आ जाएगा। तो क्रेडिबिलिटी, डिपेंडेबिलिटी, ये सब चीजें धीमे धीमे उसके अंदर डेवलप होने लगेंगी। दिस इज व्हाट द स्किल डेवलपमेंट इज, दिस इज हाउ यू विल मोटिवेट हिम, है ना। सो ऑल दीज थिंग्स मेक्स यू अ कॉम्पिटेंट एचआर प्रोफेशनल सिंस यू आर लर्निंग ऑल अदर सब्जेक्ट्स ऑल्सो। तो ये हो सकता है कि आपका कोर इंटरेस्ट हो एचआर में जाना है, तो ऑल दिस थिंग्स विल हेल्प यू टू कंसोलिडेट ऑन योर डिसीजन कि नहीं ये सब अच्छा है और मैं कर सकती हूँ या कर सकता हूँ, और आई एम इन ए राइट जोन और राइट फील्ड। इफ देयर इज ए स्टिल देयर इज अ डाउट कि ये करूँ वो करूँ ऐसा करूँ वैसा करूँ, सो देन यू कैन डेफिनेटली टेक ए कॉल बाय द एंड ऑफ दिस एंटायर ओरिएंटेशन ड्यूरेशन कि भाई इसमें से मुझे क्या करना चाहिए, subject to my own area of expertise, my own traits. So now you know the word skill, now you know the word competency, now you know what all things are there in HR. You can take a call. Quickly before we end this session, today's session, these are the roles or careers that being in HR you can think of. Consulting, hiring, training, technology, any of them or all of them, they all are your areas. आईटी में हो गए ना अभी आजकल, इन्फ्लुएंसर हो गए, व्लॉगर हो गए, ब्लॉगर हो गए, कंटेंट डेवलपर हो गए, तो आप रील भी बना सकते हैं और आप व्लॉगिंग भी कर सकते हैं। रील इज फॉर एंटरटेनमेंट, व्लॉगिंग इज फॉर इंफॉर्मेशन। पहले ब्लॉग होते थे, अब ब्लॉग हो गए, ऐसा नया नया आता रहेगा। सिमिलर थिंग इज विद एचआर आल्सो, देयर आर लॉट ऑफ टेक्नोलॉजीज कमिंग इन। तो अभी इंटरव्यू आईआर बेस्ड हो गए, देयर वाज अ क्वेश्चन समवन हैड आस्क्ड, तो अभी इंटरव्यूज आईवीआर बेस्ड हो गए, आपको सवाल भी नहीं पूछना है, प्री प्रिंट 8-10 क्वेश्चन हैं, उधर से एक बहन जी का फोन आपको आएगा, ये पोजीशन है, सही उत्तर के लिए 1 दबाएं, गलत के लिए 2 दबाएं। तो नाउ एज अ रिक्रूटर यू नीड नॉट आस्क आल्सो, आधा काम तो आईवीआर ही कर देगा, पढ़े लिखे हैं कि नहीं। तो 50 में से 25 तो वही आपके स्क्रूटनी हो जाएंगे, तो बाकी 25 आदमी मगजमारी करना है। दैट इज टेक्नोलॉजी, है ना। चीजें आउटसोर्स होने लगी। सो व्हेन यू से टॉक अबाउट एचआर कंसल्टेंसी, अब मेरे अगर 2000 लोग हैं तो उनका सैलरी मैं नहीं बनाता, वो कोई तीसरा आदमी बनाता है। मैं उसका पंचिंग में से रिकॉर्ड निकाल के भेज देता हूँ कि ये आदमी है, ये उसका एम्प्लॉय कोड है, इतना दिन आया, इतना दिन नहीं आया। तो जो भी थर्ड पार्टी है, दे विल मेक द एंटायर सैलरी प्रोसेस, उसका पगार उसको जमा करेगा, उसका पीएफ उसके खाते में जमा करेगा, उसका स्टैट्यूटरी ऑब्लिगेशंस फुलफिल करेंगे, रिपोर्टिंग करना होगा, वो सब वो लोग करेंगे। ओके, सेंटर ऑफ एक्सेलेंस करके कॉन्सेप्ट आ गए। बड़ा ऑर्गेनाइजेशन है तो एचआर इज सेंट्रलाइज्ड, कोर एचआर एक ही जगह से बाकी सारे प्लांट्स को मॉनिटर करेगा। हर एक जगह पे एक एचआर रिप्रेजेंटेटिव होगा जो वहां की रूटीन निटी-ग्रिटी को एग्जीक्यूट करेगा। So lot of avenues, lot of career choices in HR.
any of them, all of them can be the things. Same thing. क्या क्या कर सकते हैं? Performance and reward, employment law, employee relation, recruitment and talent planning, employee engagement, learning and development, OD, organizational development, और HR जर्नलिस्ट. ये सब कुछ एक ही में है. ऑलराउंडर सब आता है. रिक्रूटमेंट आता है, ट्रेनिंग तो भी आता है, इंडस्ट्रियल रिलेशन वो भी थोड़ा बहुत पता है, कंप्लायंस वो भी थोड़े बहुत एक्ट पता है. कम से कम इतना तो पता है कि क्या होगा तो कौन सा एक्ट पढ़ना है ना, उस एक्ट में क्या लिखा है, वो सेक्शन क्या है, उतना हमको डिटेल भले नहीं पता हो, बट देन यस, दिस इज व्हाट वी नो, सो दैट बिकम्स अ जर्नलिस्ट रोल, राइट. तो उसको ये सारी चीजें पता है. तो यू कैन बी जर्नलिस्ट, यू कैन बी स्पेशलिस्ट, यू कैन बी एक्सपर्ट, यू कैन बी कंसल्टेंट, यू कैन बी एनीथिंग और एवरीथिंग थ्रू आउट योर करियर. बट यस, चेंज इज समथिंग विच इज कांस्टेंट, और कुछ ना कुछ नया रोज आता रहेगा, वो भी पक्का है, राइट. सो दिस इज a general overview about HR as a subject, as an area. करना नहीं करना, कैसे करना, this all is left on you. क्लास भी थोड़ा लंबा खींच दिया मैंने, वैसे भी बोर हो, कहाँ है सब. 8 बजे बंद करने का था, हमको लगा 7:45 बजे बंद कर देंगे, 8:15 खींच दिया. नहीं सर. But then if it is adding value, I don't mind spending time. It can help you taking decisions. Yes. Thank you, If sir. you have any question, we can discuss. Otherwise, आपके और डिनर के बीच में मैं रुकावट बनना नहीं चाहता. Everything was crystal clear, and thank you so much for taking the class. And we are good. Pleasure is all mine. Pleasure is all. Nice to see you, Shivang san. San is a word which Japanese use. हम जैसे भाई बोलते हैं ना, तो they use a word called san. San is the pronunciation. So everybody, whatever is the designation, hierarchy in the organization, they all call each other san. Shivang san, Hardik san, Anjali san, male, female, everybody is the same word used. That's why I'm addressing Shivang as Shivang san. Okay, so thank you very much for your patience listening. See you sometimes again. तो next 2 classes हैं वो अर्चना मैडम लेंगे, 18th, 19th या 17th, 18th, next Saturday, Sunday. So you will have more ideas about HR as a function or some key areas, and then you can take, calculative decision, decisive thinking, right? Thank you, sir. Thank you, Shivang. Thank you so much, sir. Thank you, sir. Thank you, sir. Thank you, स्टार्टिंग sir. में एक कलीग ने सर बोला था कि HR मींस कि डराना. तो मुझे HR लगता है means सर वो बोला था ना डराना. डराना. काफी कुछ डरा दिया आपने मुझे ऐसा. मैंने ऐसा थोड़ा सा डेफिनेटली आपने डिस्क्राइब किया, अच्छा सर, बहुत डीपली डिस्क्राइब किया, लेकिन कुछ नए लोगों को हो सकता है कभी ऐसा लगे कि ज्वाइन करें हम या HR ज्वाइन ना करें. No, it is, see, as a function, it is a very interesting function, no doubt about it. No doubt about it. चैलेंज तो हर जगह है, लेकिन यहाँ आपके पास में पोटेंशियल बहुत है, बिकॉज इट इज नॉट इंडस्ट्री स्पेसिफिक. सबसे बड़ा एडवांटेज इसका ये है, इट इज नॉट इंडस्ट्री स्पेसिफिक. तो मुझे अगर स्विच ओवर करना है, जॉब चेंज करना है, रिलोकेट होना है, तो इसी जगह पे जाऊंगा या ऐसा ही नौकरी होगा तो ही मिलेगा. इट इज नॉट द केस. From campus to corporate, everywhere you are employable. ब्रॉड एरिया. बहुत स्पेक्ट्रम बहुत बड़ा है, और इसके अंदर भी बहुत सारे अलग अलग सेक्टर्स हैं. तो जहां हमको एक्सपर्टीज करना है हम कर सकते हैं. और सबसे अच्छा है सर कि आफ्टर 58 भी आप सर्विस दे सकते हैं. हाँ, जिंदगी के साथ भी, जिंदगी के बाद भी जैसा है इसका. बिल्कुल बिल्कुल नौकरी सर. के साथ भी, नौकरी के बाद भी, आफ्टर 58 आल्सो. आज भी कई लोग याद करते हैं सर, पूछते हैं
है ना? तो यही है मतलब करेक्ट कनेक्ट। करेक्ट करेक्ट, एब्सोल्युटली। ये जाने के बाद भी लोग आपको याद रखते दो कारण हो सकते हैं याद करने के, अभी कौन सा है कारण यू नो बेटर या जो लोग याद करते हैं उनको पता होगा, बट या तो आप हैं। प्रख्यात है या दुआओं में याद रखते हैं सर। हाँ, बस 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 यही दुआ करते हैं कि वो उधर ही रहे सर। आप प्रख्यात हो सकते हैं या कुख्यात हो सकते हैं, इन दोनों सूरतों में लोग आपको याद तो करेंगे। But then, yeah, this is an area where you connect with maximum number of people. आपका नेटवर्किंग बहुत स्ट्रांग होगा। करेक्ट। लोगों से मिलेंगे आप, अगर किसी के पास किसी को कुछ छोटा भी हेल्प कर देंगे तो यू आर देयर इन देयर मेमोरी फॉर अ वेरी लॉन्ग टाइम। दैट इज द ब्यूटी ऑफ दिस प्रोफेशन, है ना? So this is how you have to sell HR also. Very good and healthy session for today, because of four participant in a same organization. Right. I'm very happy. I'm very happy to connect with Yes, people with whom I spent very happy time. Lot of Raju Srivastav we shared together. Yes, sir. I'm very happy that there is someone from the place where I spent my childhood, Praveen. Yes, sir. There are people from ex organizations, so yeah, I also enjoyed, and that's why 8:15 8:30 बज गया, पता नहीं चला मुझे, है आप लोगों को तो चला होगा। नहीं सर, अच्छा कनेक्ट रहे आपके साथ, तो कुछ अच्छा रहा। सर एक चीज पूछनी है, हमें लॉन्ग टर्म में बहुत ज्यादा डिप्लोमेटिक होना पड़ेगा या हम जैसे हैं वैसे भी रह सकते हैं इस प्रोफेशन में? मतलब क्या है इस प्रोफेशनल एंड में, थोड़ा सा लास्ट में जाके? गुजराती में एक सेइंग है, उसका हिंदी मतलब ऐसा है कि आपकी आदत, आपकी प्रकृति, आपका स्वभाव और आपके प्राण, ये दोनों साथ में जाते हैं। तो आप जैसे हैं आप वैसे ही रहोगे, आप अपने आप को बदल तो नहीं पाओगे, है ना? कुछ चीजें ऐसी जो आपको कॉन्शियसली करनी पड़ेगी। तो अगर मैं सॉफ्ट हार्टेड हूं ना, तो मैं सॉफ्ट हार्टेड हूं, मैं आई कैनॉट टेक टफ डिसीजंस। आपको कॉन्शियसली करना पड़ेगा। अगर आपको सर्वाइवल है तो, मतलब अगर वो चैलेंज है तो कॉन्शियसली करना पड़ेगा। तो सॉफ्ट हार्टेड लोगों के लिए एचआर भी है ना, मतलब इट्स अ गुड प्रोफेशन। बिल्कुल एम्पैथी इज अ कोर। थैंक यू सर। तो इंडस्ट्रियल रिलेशन के अलावा बाकी किसी भी एरिया में आप काम कर सकते हो। वो एक ऐसा एरिया है जहां आप काम नहीं कर पाओगे, बस आप लोगों को डांट नहीं पाओगे, गाली नहीं दे पाओगे, निकाल नहीं पाओगे, तो यही एरिया बस तो इंडस्ट्रियल रिलेशन। उसके अलावा बाकी सारे एरिया में आप काम कर सकते हैं, क्योंकि वहां लोगों से बातचीत ही करना है। कौन से एरिया में काम नहीं कर सकते? कौन सा एरिया? इंडस्ट्रियल रिलेशन जो एक एरिया है ना, जहाँ पे आपको डिसीजन लेना है, उसको निकालो, इसको बाहर करो, इसको ये करो, उसको वो करो, इसको पनिशमेंट, इसको सस्पेंशन, वो तो पार्ट है एचआर का। इट्स अ पार्ट ऑफ एचआर। तो यू वांट टू बी अ सक्सेसफुल सीएचआरओ, सीएफओ, तो ये सब सीखना पड़ेगा। अगर मेरा नेचर नहीं है तो मुझे कॉन्शियसली करना पड़ेगा। नहीं संजोली जी, ऐसा कुछ डरने की जरूरत नहीं है। डेफिनेटली कि आज स्टार्ट है तो आज स्टार्ट है तो मन में डाउट रहते हैं, लेकिन डेफिनेटली अगर लर्निंग का आपके अंदर एबिलिटी है कि मैं लर्न कर सकती हूँ, चीजों को सीख सकती हूँ, तो डेफिनेटली कुछ भी इम्पॉसिबल नहीं है। आपका सर मेरा एक क्वेश्चन था सर। हाँ जी। गुड इवनिंग सर, मैं कुमार गौरव सांडिल फ्रॉम जमशेदपुर सर। ओके सर मेरा कहना ये था कि धीरे धीरे चीजें जो प्राइवेटाइजेशन हो रही है, जैसे एवरीथिंग गोइंग थ्रू कॉन्ट्रैक्चुअल सर है, तो सर जैसे मतलब मैंने नोटिस किया है कि कॉन्ट्रैक्चुअल में धीरे धीरे चीजें सर इतना मैनिपुलेट हो जाता है, जैसे एज पर ग्रीवेंस में आके, जैसे जो वर्कर है उन लोग को ओवर टाइम करना पड़ता है, उन लोगों पे जो है मतलब सही होता नहीं है, उन लोग को समय में जैसे मतलब जो ग्रीवेंस है उनका, उसमें मैनिपुलेशन होता है। तो इस केस में जैसे मतलब ट्रेड यूनियन होता है जैसे मतलब कंपनीज के लिए, तो कंट्रैक्चुअल वर्कर्स के लिए कुछ नहीं है। एटलीस्ट फिर उनको जाना पड़ता है, जैसे मतलब आपका लेबर कमिश्नर हो गया उन लोग के पास में। तो इस केस में जैसे मतलब अगर कंपनीज है तो बीच में ऐसे कुछ उनके लिए कुछ कर नहीं सकते हैं क्या?
नहीं देखो, अगर एचआर प्रोफेशनल के बारे में बात करेंगे, एज एन एचआर मैनेजर हो या जो भी हो, तो उसका काम क्या है? उसका काम है बिजनेस को सपोर्ट करना। जी सर। अभी अगर मुझे अनएथिकल चीजें पसंद नहीं है तो मैं वहां से निकल जाऊंगा। मैं मैनेजमेंट को बोल सकता हूँ, साहब ये गलत है, कॉम्प्लायंस के फ्रेमवर्क में नहीं आता है ना। ओवर टाइम कराना कॉम्प्लायंस के फ्रेमवर्क में नहीं आता है। फैक्ट्रीज एक्ट बोलता है कि भाई आप इससे ज्यादा नहीं करा सकते, इतने घंटे ज्यादा काम नहीं करना चाहिए, कानून बोलता है, कायदा बोलता है। इसको पालन कराने वाला जो भी अधिकारी है, ये उसका रिस्पॉन्सिबिलिटी बनता है कि उसको कैसे एनफोर्स करता है, और इंडस्ट्री उसमें से कैसे मैनिपुलेट करने के लिए रास्ते ढूंढती है, वो इंडस्ट्री का काम, बिकॉज दे आर फॉर द बिजनेस, है ना। विद इंक्रीजिंग मैन पावर कॉस्ट, इंडस्ट्री विल फाइंड द वेज कि अपन इसको कैसे मैनिपुलेट कर सकते हैं। तो इसके लिए दो कायदे हुए, एक फैक्ट्रीज एक्ट हो गया, दूसरा कॉन्ट्रैक्ट लेबर रेगुलेशन रेगुलेशन एक्ट हो गया। दोनों कायदे सरकार ने बनाए। कॉन्ट्रैक्चुअल वर्कर की वर्किंग कंडीशन का ध्यान कैसे रखना चाहिए, फैक्ट्रीज एक्ट में लिख दिया। कॉन्ट्रैक्चुअल वर्कर रखना चाहिए नहीं रखना चाहिए, कॉन्ट्रैक्ट लेबर एक्ट में लिख दिया। पैसा कितना मिलना चाहिए, मिनिमम वेज एक्ट बनाया। कुछ गड़बड़ होगा तो कॉम्पनसेशन कितना मिलना चाहिए, कॉम्पनसेशन एक्ट बनाया। बहुत साल तक आदमी ने काम किया, उसको रिवॉर्ड मिलना चाहिए, ग्रेजुटी एक्ट बनाया। उसका वेलफेयर या सोशल सिक्योरिटी बनी रहे, प्रोविडेंट फंड एक्ट बनाया। तो जहां जहां ऐसे मामले आए, सरकार ने उसको एड्रेस भी किया, जिस गवर्नमेंट ने जब भी बना हो, और समय समय पे उसमें चेंजेस भी करते रहे। लेकिन जो एसएमई और एमएसएमई है, मतलब जो छोटी और मझली इंडस्ट्रीज हैं, उनको इन सब चीजों से ज्यादा मतलब नहीं है ना, क्योंकि प्रमोटर्स ड्रिवन ऑर्गेनाइजेशंस हैं, फैमिली ड्रिवन ऑर्गेनाइजेशंस हैं, बेसिक पर्पस बिजनेस है। तो वहां पॉलिसीज एनफोर्समेंट उन सब चीजों में उनको इतना ज्यादा शायद इंटरेस्ट नहीं है, बिकॉज देयर ऑब्जेक्टिव इज डिफरेंट। बट अगर एनफोर्समेंट कड़क होगा तो चीजें अपने आप सुधरने लगेंगी। एट द सेम टाइम कॉस्ट ऑफ लिविंग हाई हो गया। अब बस मैं तो देखता हूँ सिक्योरिटी गार्ड है ना, 24 घंटे ड्यूटी करते, 12 घंटा दिन में आपके यहाँ काम करेगा, रात में 12 घंटा किसी एटीएम में सिक्योरिटी का काम कर रहा। एक्सप्लोइटेशन है, लेकिन उसका जरूरत है, करता भी है। अब उसको बोलेंगे कि भाई कायदा मना करता है 48 घंटे तक काम नहीं करेगा, तो बोले साहब घर नहीं चलेगा, क्या करूं। तो दोनों जगह तकलीफ है। अभी नए देयर आर 4 लेबर कोड्स कमिंग अप, नए कोड आने वाले हैं, जो ये करीब 39 एक्ट्स या 49 एक्ट्स को इकट्ठा करके 4 कोड में इकट्ठा कर दिए। ओके, सो दैट यू विल लर्न व्हेन विल बी रनिंग द कॉम्प्लायंस सेक्शन। तो उसमें आएगा कि कौन कौन से 4 कोड है। तो उसमें काफी सारी चीजें हैं जो उन्होंने दूसरे लोगों पे जिम्मेदारी डाल दी। जैसे कॉन्ट्रेक्चुअल वर्कर था, तो अब तक कैसा था कि जो प्रिंसिपल एम्प्लॉयर है, मतलब जिस कंपनी में वो आदमी कॉन्ट्रैक्ट पे काम कर रहा है, उसकी जिम्मेदारी है। नए कोड में वो उसकी जिम्मेदारी कॉन्ट्रैक्टर की ही हो गई। तो इंडस्ट्री को थोड़ा सा रिलैक्सेशन हो गया, भाई अभी मेरा अगर टाइम पे पैसा नहीं मिल रहा है तो इंडस्ट्री कुछ नहीं करेगी, तुम कॉन्ट्रैक्टर को बोलो जिसने तुमको एम्प्लॉय किया है, वो आपका प्रिंसिपल एम्प्लॉयर हो गया। तो इस तरह के कुछ चेंजेस हैं, लिमिट बढ़ाना, लोगों का वेजेस बढ़ाना, 700-800 रुपए पर डे तक वेज लेके जाना, सो दैट कॉम्पनसेशन उनका ठीक हो। ओवर टाइम डबल देना, कायदे में लिख दिया कि अगर आप ज्यादा काम कराते हैं तो उसका कॉम्पनसेशन बढ़ा के दो। प्रॉब्लम इज विथ एनफोर्समेंट एजेंसीज, जिनको इन कायदों को अमल कराना है, वहां थोड़ा इधर उधर ऊपर नीचे है घालमेल। इसकी वजह से प्रॉब्लम यही है सर। हाँ, इसकी वजह से एक पर्टिकुलर कॉन्ट्रैक्ट वर्कर बोलो या वर्कर सेक्शन ब्लू कॉलर्स बोलो, उनकी स्थिति थोड़ी सी दयनीय हो जाती है। बट एचआर's जॉब इज टू इन्फॉर्म मैनेजमेंट दैट दिस इज नॉट करेक्ट, दिस इज अनएथिकल, और ग्रेजुअली इसमें परसुएशन काम लगेगा। आपको बार 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 रिपीट करते रहना पड़ेगा, है ना, दिखाना पड़ेगा सिनेरियोज। कंपनी में पार्किंग अलाउ नहीं है, आपको कंपनी से और 50 मीटर दूर जाके गाड़ी पार्क करना पड़ेगा, दैट इज द मैंडेट।
But then, gradually you will to make them aware or inform कि वहां करने से ये नुकसान है, इंडिविजुअल का भी और ऑर्गेनाइजेशन का भी. उतना टाइम वेस्ट होता है, उतना रिसोर्स जाता है, उधर एक आदमी डिप्लॉय करना पड़ेगा, उसका पगार देना पड़ता है, वो जगह रेंट पे लिया है, उसका भाड़ा देना पड़ेगा. अपने पास जगह है, हमारे पास कोई एडिशनल रिसोर्स का जरूरत नहीं पड़ेगा. इफ वी शिफ्ट इट फ्रॉम देयर टू हियर, इट इज कन्वीनियंट फॉर ऑर्गेनाइजेशन एंड एम्प्लॉय बोथ. तो 5 साल के बाद में जाके वो बोलेगा कि ठीक है, यहाँ गाड़ी पार्क कर सकते हैं. This is what we have done. This is what has happened. So persuasion is the only key. बार बार उनको हर फोरम में जहां मौका मिलेगा, you will have to tell them. You have to bring it to the forum, to bring it to the fore. तो होगा. So ये HR का रोल है. जहां तक हो सके हम उन परिस्थितियों को अगर बदल सकते हैं तो yes, we must do it. Okay, sir. सिस्टम को बदलना थोड़ा सा मुश्किल है. राइट, तो बाकी की डिस्कशन हम अगले सेशन में करेंगे. ओके सर, थैंक यू सर. HR आज ही सीख लेंगे तो कैसे होगा. राइट सर. घर वाले भी नाराज हो रहे हैं, कहाँ लेके. So thank you so much, patience listening. Good night. Good night, sir. Thank you so much. Good night. Good night, sir. Thank you.